Oh, okay, Purnima ji, please start. First of all, let me thank you to give me this opportunity to actually explain the subject, the 12 Rashis, and just a moment, sir. Since you are presenting, a little introduction may help us. Right. So I am Purnima Verma, and I had undertaken a basic astrological course over here, and then I got interested, and I took a course from Bhatia, and here I am. So I have joined RBJ, and today sir wants me to be giving, to explain to you all the 12 Rashis, their features, and how they are linked to the 12 dimensions of life. So Right, that's right. that. Sir, thank you so much for giving me this opportunity, and प्लीज अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो माफ कीजिएगा. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मिस्टेक सबसे होंगी, मिस्टेक्स का कोई इशू नहीं है. मिस्टेक्स खुल के करो, बट क्लाइंट नहीं मिसगाइड होना चाहिए. जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, फिलोसफी वही है. ही इज लाइक विष्णु जी टू अस. यू हैव टू ट्रीट हिम लाइक अ विष्णु जी, लाइक हमारे प्रभु हैं, दैट. और उनको 1 रुपए की उन्होंने आपको पे किया, आप उनको 1.25 रुपए का वैल्यू, 1.25 रुपए का, 1.5 रुपए का, 2 रुपए का, 2 मत दूंगा, ठीक है ना. बट गिव देम वैल्यू. इस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है. चलिए पूर्णिमा जी, प्लीज कंटिन्यू. Okay. या Now, we're going to start with the 12 Rashis. And what are these Rashis? Actually, the zodiac, our zodiac is, as we all know, a circular belt around the earth, which is 360 degrees, and it is divided into 12 equal parts, each part comprising of 30 degrees, and that forms a Rashi. So we have 12 Rashis of 30 degrees each. Now, each Rashi is governed by a planet. The Rashi has their intrinsic qualities. बेसिकली गाइस, आपको ये बात हमेशा समझनी है कि एवरीवेयर डाउन द लाइन योर ब्रेन इंटरेक्ट्स विद द सिंबल्स. और ये राशिज भी अपने आप में सारी की सारी सिंबल्स हैं टोटली. अगर आप मीन राशि देखते हो तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर आप चीजों को समझोगे, इट इज शोइंग कि ये सिंबल बता रहा है कि कहीं आसपास आपको, कहते हैं ना, वो जिस भी घर में है, तो ये सिंबल क्या बता रहा है, मछली कहाँ होती है, समुद्र में होती है. दैट मीन्स वाटर से संबंधित उस दिशा में आपको जाकर कुछ ना कुछ करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब कोई नौकरी ढूंढ रहा है, आपसे पूछता है क्या दिशा में नौकरी मिलेगी मुझे, ठीक है ना. तो यू हैव टू ऑलवेज सी कि उसका 6th हाउस का जो है वहां पर राशि कौन सी पड़ी हुई. दीज आर द फैक्टर्स. इसी तरह से कोई व्यक्ति है, उसकी मोड ऑफ ऑपरेंडी होती है. अब आप स्कॉर्पियो की ले लीजिए, हाउ स्कॉर्पियो ऑपरेट्स, अंडरस्टैंड दिस. Scorpio operates under the earth, right? Most of the time. Okay, so we have in total of 12 Rashis. I will start with the first one, that is Mesh Rashi. Mesh is Aries, governed by Mars. The second is Vrishabh Rashi, that is Taurus, governed by Venus. The third is Mithun, that is Gemini, governed by Mercury. The fourth is Kark, that is Cancer, and governed by Moon. The fifth Rashi is Leo, that is Simha Rashi, and it is governed by the Sun. The sixth Rashi is Kanya, that is Virgo, governed by Mercury. The seventh is Tula, that is Libra, and governed by Venus. The eighth is Vrishchik, that is Scorpio, again governed by Mars. The next Rashi, ninth Rashi, is Dhanu Rashi, which is Sagittarius and is governed by Jupiter. The 10th Rashi is Makar, that is Capricorn, and governed by Saturn. The 11th Rashi is Kumbh, that is Aquarius, governed by Saturn. And the 12th is Meen, that is Pisces, and governed by Jupiter. Now over here, Sir has given us really beautiful formulas how to remember the Rashis. He has given us 3 words,
One is Merimek I'm just Sik- bringing on the screen also. Just a minute. and Dhamkumi. There are three words, Merimek, Siktuvru, and Dhamkumi. So how do we go about it? First is May, that is Mesh Rashi. Second is Ri, that is Vrishab. I'm talking about the words May, Rimik. May is Mesh Rashi, Ri is Vrishab Rashi, Mi is Mithun, and K is Kark Rashi. So that forms the first word May, Rimik. The next is Siktuvra. C is Sinha Rashi, that is Leo. K for Kanya, that is Virgo. Two is for Tula, that is Libra. And Vrit is for Vrishchik, that is Scorpio. The third word is Dhamkumi. Dha stands for Dhanu, M for Makar, Ku for Kumbh, and Me for Meen. Okay, so that is how we remember. Once we remember three words, and we can remember the Rashis too. Now, these Rashis are governed by their planets. When they are governed by the planets, how do we remember which Rashi goes to which planet? So, there is one easy way that Sir has taught. Just remember table of 9. 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. Now we go to Rashi number 1, that is Aries, governed by Mars. Just write the number 18, 9 2s are 18 over there. So what does it mean? It means Mars governs Rashi number 1, that is Aries, and Rashi number 8, that is Scorpio. The second one, go to Rishabh sign, which is ruled by Venus, right? 9 3s are 27. That means Venus governs Rashi number 2, and Venus governs Rashi number 7. Now, the next line, go to Mithun Rashi, which is governed by Mercury, right? Number 36 over there. 9 4s are 36. So, what it means? Mercury governs Rashi number 3 and Rashi number 6, that is Kanya. So, we have finished with around 6 Rashis. Now, the remainder. There are 4 Rashis that remain. Number 9, number 10, number 11, and number 12. That is Dhanu, Makar, Kumbh, and Meen. Okay, over here, the 9th Rashi and the 12th Rashi, that is Dhanu and Meen, that is Sagittarius and Pisces. They both are governed by Jupiter. So what you need to do, just write 9, 1, 2 in front of Dhanu Rashi. That means Jupiter governs Dhanu Rashi and Jupiter also governs Pisces. Okay. Now there remain only 2 Rashis, that is Makar and Kumbh. That is Capricorn and Aquarius. So it is governed by one, that is Saturn. I'm sorry I missed out on 2 Rashis again. That is Leo and Cancer. Cancer is governed by the moon and Leo is governed by the sun. They are given only 1 Rashi each. The rest have been given 2 Rashis. Okay, so Mars governs Mesh, that is Aries, and Vrishik, that is Scorpio. Venus governs Rishabh, that is Taurus, and Tula, that is Libra. Mercury governs Mithun, that is Gemini, and Kanya, that is Virgo. Kirk, Cancer is governed by Moon, and Singh, Leo is governed by Sun. Okay. Dhanu, Sagittarius is governed by Jupiter.
Makar, Capricorn against Saturn, Kumbh and Aquarius, that is Saturn, mean that is Pisces is governed by Jupiter. Now these are the 12 Rashis. They also have their elements. Now there is an easy way. Elements yani ke, it is, the elements are air, earth, and water. That is, sorry, Agni, Prithvi, Vayu, and Jal. So there is fire, earth, air, and water. 4 elements. Okay, so there is this group of 3 Rashis each going into each of the elements. For example, Four. Group of 4. Rashi- Group of 4. Sorry, sir. Group of 4. Group of 4. Aprivaj. Yeah, group of 4. What you could do is, once you have written down all the Rashis number wise 1 to 12, what you do is you write the word Aprivaja. You can see the screen, guys. It is mentioned very clearly. Agni, Prithvi, Vayu, Jal. You can see the screen. Right? Aprivaja. That's right. A for Agni, Pri for Prithvi, Va for Vayu, and J for Jal. So A for Agni, that is fire. Next is earth. Prithvi is for earth. Vayu is for air, and J as in Jal, that is water. You keep on writing the same things. Aprivaja. First is A, second Pri, third Va, and fourth Ja. And again repeat it and repeat it in the same manner. So you get the elements of the Rashis. There is also a Swabhav or modalities to the Rashis. Again, in the same manner that we have. So we now come to the Swabhav modalities of each of the Rashis. Now the modalities are like around 3 of them. One is Char, which means moving. The second is Sthir, that means fixed. And the third is Dvi, that is dual Swabhav. In the sense, Char is moving. These people like to wander about, move around, go to public. This is what is Char. Okay. So when we give this particular modalities to the planets, again, we write down in the numbers 1, 2, 3, Char, Sthir, Dvi, again Char, Sthir, Dvi, again Char, Sthir, Dvi, and again Char, Sthir, Dvi. So there will be 4 Rashis that would be Char, there will be 4 Rashis that would be Sthir, and there will be 4 Rashis that would be Dvi, that is 12. What is Char? Char is moving people. They all like to keep moving. They like to wander about. So like, even if they would like to go somewhere abroad, they may go abroad. They may go to a different place from there. Okay. So these are this sort of people who like to move about a lot. Now we come to the fixed type of people or fixed type of Rashi. These people, they like to stay at one place. They do not like to move about, and they are not actually very comfortable moving around, or they are not too adaptable to changes. They do not like a lot of changes. The Swabhav is, they are very comfortable people. They adapt very fast. They have like 50% of the Char Rashi and 50% of the Sthir Rashi. And that's how they are adaptable. So these are the adaptive as well as they are sometimes confused also. Yes, they are confused also. That's right, sir. So now when we have finished this, there is a table. तो सॉरी राशिस के जो लॉर्ड्स है वो बताइए, और राशिस के लॉर्ड्स का जो फीचर होता है थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दीजिए,
फिर साइंस के ऊपर जो जो बात है वो मैं बताऊंगा कि जो पर्टिकुलर राशि हैं उनका बिहेव ऐसा होता है तो क्यों होता है, जी ठीक है ना। अगर कैंसर केकड़ा दिखता है आपको, यू सी अ क्रैब ओवर देयर, व्हाट इज द फन, व्हाई एंड हाउ इट बिहेव्स। इफ यू सी अ स्कॉर्पियो, हाउ इट बिहेव्स एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसी हिसाब से आप बिहेव करोगे। पर्सन हु इज लिब्रा, he will always search in balance, like he just wanted to find out balance, something should not go wrong from my end, those kind of things. Okay, so one example of hardcore liberalism is I am sitting in front of you, right? This is how you have to understand. When your governed planet and is basically that is decided by the rashi, your governed planet is decided with the virtue of rashi. This is how you have to understand. And now what is the planet? So when we talk about the planets, अशोक जी यू कैन जस्ट शेयर कि राशि वाइज कौन से प्लैनेट्स किसका, जो लॉर्ड्स तो हमने बता ही दिए सबके, जैसे जी। मंगल, एरीज, ठीक है ना। अब एरीज और जो स्कॉर्पियो है, ठीक है, उनके लॉर्ड मंगल है। अब मगर मंगल क्या करते हैं, ठीक है ना, मंगल का फीचर क्या है, मंगल के गॉड कौन है, मंगल कौन से इष्ट देव से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको ये थोड़ा सा अशोक जी विल कंटिन्यू। अशोक जी इज हैविंग अ वेरी डीप एक्सपीरियंस, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर आई वुड से फ्रॉम हैदराबाद. So he has his own point of view also, not only the things I taught him. इनका अपना point of view भी बड़ा सटीक रहता है, ठीक है, and I am very impressed from his skill set, ठीक है। बट अशोक जी का अर्थ एलिमेंट जो है थोड़ा सा प्रभावशाली है, तो अशोक जी थोड़ा धीरे बोलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा इंटरेक्टिव कर दीजिए इसको और मजेदार बना दीजिए। पूर्णिमा जी, आई जस्ट ट्राई टू, आपका नेटवर्क बिजी आ रहा है, वो सॉरी खराब आ रहा है, तो आई जस्ट टोल्ड कि जो राशि आपने बताई है उसको आप आगे अशोक जी कनेक्ट कर देते हैं फर्दर, ठीक है ना, सो दैट प्लैनेट्स का भी कवरेज आ जाएगा सर। ठीक है अशोक जी, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर जी। निधि जी, अगर आपके पास राशि लिखी हुई है तो आप एक बार 18 नंबर और वो वाला चार्ट दिखा दीजिए, जहाँ से ये सब बातें कनेक्ट हो पाएंगी, क्योंकि विजुअली दिखना जरूरी होता है, थोड़ा सा दिखेगा तो अच्छा लगेगा सबके लिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, जो ये आपने दिखाया है ये बिल्कुल सही चार्ट है, इसको बड़ा कर दीजिए। अब 18 नंबर एरीज, इसके जो लॉर्ड है वो उसके बारे में चर्चा होगी, उसके लॉर्ड कौन है, मंगल है। तो आओ ना, ओवर टू अशोक जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर जी, आपने मुझे अशोक जी अपॉर्चुनिटी दी। प्लीज गिव अ डीप इनसाइट, पूरा मंगल हिला दो आज यहाँ पे बैठ गए, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं अपना जो प्लीज भी है प्लीज अपना प्लीज पूरा पूर्णतः देने मंगल की हिला दो, कोशिश हर एक करूँ। प्लेनेट को पूरा खोल दो एक एक प्लेयर, ठीक है ना। आई विल ट्राई, आई यस विल ट्राई यस माय यस, बेस्ट सर। प्लीज थैंक यू प्लीज, सर, आपका अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें यहाँ पे। ऑलवेज वेलकम। और तो जैसे कि पूर्णिमा जी ने आज पूरी स्टार्टिंग से लेके राशियों के बारे में बताई, तो मैं बस यही बताना चाहूंगा कि राशियों के लॉर्ड क्या है और उनका स्वभाव कैसा है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं यही कहीं ना कहीं हमें ये प्रिडिक्ट करने में सहायता देंगे कि उस जातक का भविष्य कैसा है, पास्ट कैसा था और प्रेजेंट कैसा है। तो पहले राशि हो गई मेष। तो मेष का जो राशि लॉर्ड हो जाता है वो मंगल, और मंगल मेष राशि के साथ साथ वृश्चिक राशि का भी स्वामी है। तो मेष को हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि 18, 1 और 8। अशोक जी 1 मिनट के लिए रुकूंगा, मैं कहता है अगर आपने कोई पीपीटी बना रखी तो आप भी अपनी शो कर सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी फ्रॉम, इट शुड कम फ्रॉम माय साइड ओनली। आप दिखाना, अगर आप उस दिन काम कर रहे थे, अगर आपकी रेडी नहीं है तो फिर ये इसको यूज कर लीजिए। सर जी अभी वो अंडर प्रोसेस में, हमें नो पता नहीं था प्रॉब्लम, नो कि प्रॉब्लम, आज प्लीज कंटिन्यू विद हो दिस, प्लीज जाएगा। कंटिन्यू। मैं अगर आपकी डिस्कम्फर्ट जोन में ना हो जाओ, हर एक का अपना तरीका होता है ना पढ़ाने का, इसलिए जी जी, आप बताइए। तो ये तो हम यहाँ से बता देते हैं, जी जी, यहाँ यही कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि यही प्लीज फॉलो प्लीज करता है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो फर्स्ट राशि जो है वो मेष है। मेष की जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है वो मंगल, और मंगल और एक राशि को लॉर्ड करते हैं, वो है वृश्चिक, जो कि नंबर 8 है। तो हम उन दोनों को, मेष को हम ऐसे गिन सकते हैं कि 1 और 8 राशि के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, वो हो गए हैं मंगल। और दूसरी राशि है वृषभ, जो गवर्न करते हैं शुक्र, और शुक्र राशि के जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र जो गवर्न करते हैं और एक राशि है उनकी, वो है तुला। इसीलिए हम दूसरे नंबर और 7वें नंबर, दूसरा नंबर हो गया वृषभ और 7वां नंबर हो गया तुला।
ये दोनों राशियों के स्वामी हो गए हैं शुक्र यानी कि वीनस। अब तीसरी राशि है मिथुन, और मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुध। बुध जो है और एक राशि को लेकर चलते हैं, वो है कन्या, सिक्स राशि। 3 और 6 के जो लॉर्ड हैं वो है मिथुन। और चौथी राशि है कर्क। तो ये पूरे हमारी राशि जितनी भी राशि है इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे प्लैनेट, जो 2 ही ऐसे राशियां हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही राशि लॉर्ड है, चंद्र और सूर्य। इनके पास दूसरी राशि नहीं है, सिर्फ एक ही राशि है। जैसे कि कर्क राशि है कैंसर, कैंसर सिर्फ चंद्रमा गवर्न करते हैं और इनके पास चंद्रमा के पास और कोई राशि नहीं है। और सूर्य है, सूर्य भी जो है सिर्फ सिंह राशि को ही अपने लॉर्ड समझ के चलते हैं। और नेक्स्ट राशि जैसे तुला मैंने बता ही दिया, कन्या बुध राशि, तुला हो गए शुक्र राशि, वृश्चिक हो गए मंगल राशि। अब यहाँ धनु राशि आती है। धनु होते हैं 9वें नंबर के 9th नंबर, और धनु राशि जो है वो गवर्न करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति और एक राशि को गवर्न करते हैं, वो है मीन, जो कि 12th राशि होती है। Jupiter, 9 और 12 जो हो गया, ये हो गया बृहस्पति। और शनि जो है वो 2 राशि को गवर्न करते हैं, मकर और कुंभ, नंबर 11 एंड नंबर 10। तो इन दोनों के जो राशि लॉर्ड हो गए वो है शनि। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पूरे राशियों के जो है 2-2 राशि लॉर्ड हैं, लेकिन सिर्फ सूर्य और चंद्र के एक ही लॉर्ड हैं, वो है कर्क और लियो के सूर्य और चंद्र। ठीक है, तो अब चलते हैं इनके जो राशि है इनकी स्वभाव कैसे हैं। तो सर जी ने जैसे कि हमें पहले ही क्लास में बताया हुआ था, जैसे पूर्णिमा जी ने भी कंप्लीट कर दिया मेब्रिमिक का, तो वैसे ही इन प्लैनेट्स को हमें याद करने के लिए, जो कि हमें जब हम विषुमूत्री दशा भी देखेंगे तो राशि के जो सीक्वेंस होंगे, जो प्लैनेट्स के सीक्वेंस होंगे, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि इसके बाद कौन सी विषुमूत्री दशा चलेगी। तो उसका भी एक लॉजिक है जो सर ने बहुत अच्छे से बताई हुई है। जैसे कि सु च म, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है नोट्स के अंदर। एक्चुअली इसमें ना नोट्स के अंदर एक्चुअली मैं यूज नहीं करता, तो ये नोट्स जो है इनमें सूचम रागु मेरे ख्याल से वाला फार्मूला मिलेगा नहीं आपको, बट ब्रॉडली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ा फास्ट रखने के लिए। सूचम रागु शब्बू केशु सबको पता है, यहाँ पर जी सबको पढ़ाया हुआ है, सूचम रागु शब्बू केशु। तो आप, हाँ ये रहा, यस दिस इज द स्क्रीन यू कैन सी हियर। ठीक है, तो सूचम रागु शब्बू केशु। अब आगे का ब्रीफ दीजिए अशोक जी प्लीज। जी सर। तो अब ये सूचम राहु केशु, अगर अब हम इसी सीक्वेंस में हर एक प्लैनेट की गुणवत्ता क्या है, वो किस तरह से वो काम करते हैं, वो उनका मेलेफिक होना बेनिफिक होना हमारे ऊपर किस तरह से इनका प्रभाव पड़ता है, तो हम ये बताना चाहेंगे। तो चलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं सूर्य से। जैसे कि सूर्य सबको पता ही है, सूर्य जो है अपने 9 ग्रह का स्वामी, मतलब उनको किंग कहते हैं सूर्य को। ये हमारे जो है सोल को डिनोट करते हैं, हमारी एनर्जी को डिनोट करते हैं, और कह सकते हैं ये हमारे फादर्स एंसेस्टर्स को लेकर चलते हैं। हम इनके अगर सूर्य की मैलफिक होने से इन सभी को कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गए। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें, प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, इनके वजह से हमें उस जातक की कुंडली में हम क्या देख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि सूर्य अगर समझ लीजिए उच्च का है, तो उनकी जो है इम्यूनिटी सिस्टम्स जो है बहुत स्ट्रांग होगी, एनर्जी बहुत होंगे उनके पास, इनिशिएटिव्स रहेंगे, करेजियस रहेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा उनके अंदर। लीडरशिप, एक ये बात बहुत ही सूर्य के अंदर ये देखी जाती है कि लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बहुत रहती है, अथॉरिटेटिव रहते हैं। और क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी रहती है इनकी। तो ये सब जो है, इनके विल पावर्स भी अच्छी रहती है, आई साइट भी अच्छी रहती है। जिनका वीक हो जाए अगर सूर्य, तो सूर्य समझ लीजिए वीक होने से ये पूरे जितने मैंने अभी पॉइंट्स बोले हैं, इनके लीडरशिप में कमी आ जाती है, इनके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं इनके एलिमेंट्स भी जो है हिल जाते हैं। जैसे कि सूर्य का एलिमेंट्स होता है फायर, तो इनके अंदर जो है फायर की कमी आ जाती है। तो ये जो कहीं भी कुछ अगर अपना बताने की कोशिश भी करेंगे तो ये सही से कन्वे नहीं कर पाएंगे कि कैसे कन्वे करें। इनकी पूरी डाइजेशन हो जाती है। अगर हेल्थ वाइज हम इनको देखें
तो ये कहीं ना कहीं पूर डाइजेशन कर देते हैं बॉडी में, लेजीनेस ला के दे देते हैं, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स ले देते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, बहुत ही एक अलग ही इंसान बना देते हैं। सूर्य का इतना प्रभाव होता है कुंडली में। अगर मान लीजिए इनकी कुंडली में मंगल के साथ अगर इनका कुछ जोड़ बन जाए, दोनों अगर सूर्य और मंगल उच्च के हो जाएं, तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि मंगल भी फायर प्लैनेट है और सूर्य भी फायर प्लैनेट है, तो इनका फायर ही जो बॉडी में होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो इससे इनका ये प्रॉब्लम होगी कि ये एग्रेसिव ज्यादा हो जाएंगे, इनकी मसल्स जो है क्रैम्प होने लगेंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। तो ये है सूर्य की एक एस्पेक्ट्स है, सूर्य की ये यस, कैरेक्टरिस्टिक है जो मतलब ब्रॉडली अगर आप समझोगे तो पूरी की पूरी हड्डियों का जो ढांचा है, हड्डियां है ना आपकी, अगर आपकी हड्डियां पूरी डिस्टर्ब हैं या किसी भी कारण से हड्डियों में प्रॉब्लम आते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन या सूर्य आपका एलिमेंट वीक हो रहा है। इसके अलावा आपको यश नहीं मिल पा रहा है, आपको जो ड्यू क्रेडिट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जी ये सारे चीजें सूर्य करता है। और एज वेल एज ये सूर्य जो होता है ये आपकी रेपुटेशन का भी मालिक होता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट। आपका यश कीर्ति कितना फैलेगा। आप सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर क्यों है? तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं वो एक स्पेशल उनको एलिमेंट ऐसा मिला हुआ है। अमिताभ बच्चन है तो एक्टर्स में अमिताभ बच्चन है, क्यों है? वो आपको देखना पड़ेगा। तो वहां पर इस तरह के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं ये सूर्य की वजह से। यस प्लीज कंटिन्यू अशोक जी, बताइए। जी। तो सूर्य के बाद आते हैं चंद्रमा। तो सर जी, और सूर्य के बारे में और कुछ बोलना, बस इतना काफी है? अभी इतना ठीक है फिलहाल, बिकॉज सारे फर्स्ट हाँ लेवल पे हैं अभी, बाकी ठीक है। आप बताइए आगे, मैं बाकी टचअप देता रहूंगा मैं बीच बीच में। जी। राइट राइट। तो चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही हम डे टू डे लाइफ को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा से ही हमें राशियों का पता चलती है, चंद्रमा से ही हम गुण मिलान करते हैं, जब भी कभी हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं ना शादी के लिए, तो चंद्रमा से ही हम देखते हैं, चंद्रमा से हम नक्षत्र को पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चंद्रमा के बारे में अगर कहें तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट इन आवर हॉरोस्कोप। और चंद्रमा से हम अपने मदर को देखते हैं, और चंद्रमा से हम अपने क्या कहते हैं, अपने पीस देखते हैं, मेंटल पीस, जो कि ये दो चीज एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर उसकी मेंटल पीस सही नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगा। अगर उनके पास, अगर किसी जातक के पास मदर भी नहीं है तो भी वो डिस्टर्ब है। तो चंद्रमा को हम इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये प्लैनेट है, क्योंकि ये एक जातक को बहुत ही एक लेवल तक लेकर जा सकता है। अगर मेंटल अगर इश्यूज आ जाएं तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइड कर सकता है। अगर उसका मेंटल इश्यूज बहुत अच्छे हैं तो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। तो चलिए इनको अब डिकोड करते हैं कि चंद्रमा है कैसे। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे तो ये बहुत ही कूल और फीमेल प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में फीमेल इनसे डिनोट होता है। और ये क्या करते हैं कि अपने जितने भी हेल्थ है माइंड के और बॉडी के, ये वाटरी प्लैनेट है। ठीक है, बॉडी में अगर कहीं भी मून डिस्टर्ब हो गया तो समझ लीजिए आपके बॉडी के अंदर वाटरी जो पोजीशन है वो डिसबैलेंस हो जाती है। और मून जो है हमारे फीलिंग्स को दिखाता है, हमारे केयर को दिखाता है, हम कैसे केयर कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स और अपने फादर्स, मदर्स, पेरेंट्स, सबके लिए। और क्रिएटिविटी कितनी है इनके अंदर, सर्विस कितना अच्छा दे पा रहे हैं, साइकिक एबिलिटी कितनी है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि अभी कह लीजिए डॉक्टर्स, ये सब उच्च यानी कि बेनिफिट मून के वजह से ही डॉक्टर्स बनते हैं, नर्स बनते हैं, हॉस्पिटल सेक्टर्स में ये जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मून जो है इनका उच्च का होने की वजह से ये कर पाते हैं। और बॉडी पार्ट्स में एलिमेंट्स की बात करें तो मून जो है एक वाटरी एलिमेंट है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा। तो एलिमेंट्स की ये होती है, और वाटर डिस्टर्ब हो जाता है तो स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, मसल्स क्रैम्प, छोटा सा ड्राई एग्जांपल स्किन। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ लाइव। अब रविंद्र जी हैं हमारे यहाँ पे,
रविंद्र जी का नॉर्थ ईस्ट डिस्टॉर्टेड हुआ, वाटर एलिमेंट वहां पर खराब हुआ जैसे, ठीक है, ऑटोमेटिकली मून खराब हुआ। फॉर एग्जाम्पल मून जी। खराब होते क्या हुआ, मेंटल ब्लॉकेज, डिससेटिस्फेक्शन, दिस इज हाउ अननेसेसरी डिप्रेशन, सब कुछ है फिर भी डिप्रेशन, दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट। तो वाटर एलिमेंट देखिए, आपको एंड ऑफ द डे ये भी समझना है कि वात पित्त कफ सीधा आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका पूरा का पूरा सब, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अराउंड खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग अराउंड योर सबकॉन्शियस माइंड। योर वन रॉन्ग डिसीजन, you know, when a person decide to do a murder, why? Definitely due to the third house or due to the debilitated Mars. It is a hardcore fact. मंगल नीच का होगा तो आदमी इस तरह का काम कर सकता है। मंगल नीच का हुआ, थर्ड हाउस में, हैंड के हाउस में गया, जैसे गया उसने उसको इंस्पायर कर दिया मर्डर करने, गुस्से में मर्डर कर दिया जिसे कहते हैं। तो ये एक इंस्टिंक्ट आदमी, राइट। अब यही अगर मंगल थर्ड हाउस में उच्च का हो जाए, ठीक है, तो वो आदमी को एग्रेसिव प्लेयर बना देता है, एग्रेसिव जो है बैट्समैन बना देता है, एग्रेसिव हाथ से काम करने वाले आर्टिस्ट, और या मतलब एक कह लीजिए कि एक तरह से पराक्रम और हैंड इसको रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। भैया बताइए आप, अशोक जी मंगल के बारे में बता दीजिए। मैं तो सिर्फ उधर पहुंच गया जल्दी, गलती से, बता दीजिए आप प्लीज। नहीं सर जी, थोड़ा कनेक्टिविटी चाहिए क्योंकि राइट राइट, आप वो आई कैन कनेक्टिविटी अंडरस्टैंड मिला रहे बिकॉज धीरे धीरे दे विल बी एबल टू कनेक्ट। हैं। जी। तो अब मंगल की बात करते हैं। जैसे सूचम हो गया, माँ से मंगल, मार्स, इंग्लिश में मार्स। तो मार्स स्कॉर्पियो और मेष राशि के लॉर्ड होते हैं। और मंगल से हम ये भी देख सकते हैं, मंगल एक फायरी प्लैनेट और मेल प्लैनेट है ये। और इनकी जो स्ट्रेंथ है, पहले तो इनकी स्ट्रेंथ हम बात कर लेते हैं कि अगर ये उच्च के होंगे या इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये किस किस चीज को लेकर चलते हैं। तो मार्स से हम ये सीख ले, ये देख सकते हैं कि उस जातक की फिजिकली स्ट्रेंथ कितनी है, और इम्यूनिटी सिस्टम कैसी है, यूथ एग्रेशंस कितने हैं, एनर्जी कैसी है, मैस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, ये ब्लड के कारक होते हैं। अगर मार्स कहीं ना कहीं अगर कह लीजिए अगर वीक है, तो उस जातक को ये कह सकते हैं कि भाई आपको जो है ब्लड इश्यूज होने वाली है या है। ये ब्लड को कारक भी हैं, और ये जो है एक ब्रेवरी प्रदान करते हैं। अब अगर देखिए मार्स जो गवर्न प्लैनेट्स हैं जितने भी, वो सब आप देखिएगा मिलिट्री में होंगे, पुलिस में होंगे या डिफेंस में होंगे, कोई वर्दी वाली चीज होंगी जो यूनिफॉर्म वाली, उस फील्ड में ये मार्स जो है गवर्न करते हैं। इनका जो एक वायलेंस का भी कारक माना जाता है। जैसे कि सर ने कहा, अगर थर्ड हाउस में मंगल नीच का हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वायलेंस का रूप ले लेता है उस जातक में। और वेपन्स, जो भी वेपन्स अगर वर्क प्रोफाइल में देखेंगे तो ये जो भी वेपन्स हो गए या वॉर रिलेटेड वर्क्स, जो ये पूरे जो है मार्स डिनोट करता है। कंप्लीट डिफेंस सिस्टम, कंप्लीट डिफेंस सिस्टम उसके अंडर में आएगा, और मेडिकल भी उसके अंडर में आएगा। मेडिकल भी इसके अंदर आ जाता है। तो मार्स का जो बॉडी एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो ये फायर है और पित्त को डिनोट करते हैं, लेकर चलते हैं बॉडी के अंदर। और अगर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो फायरी प्लैनेट से जो फायर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि सूर्य को मैंने कहा, सूर्य और मंगल दोनों फायर अगर नीच के हो जाए या उच्च के हो जाए, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करेंगे। फायरी डिसऑर्डर्स की वजह से इनके एग्रेशन में कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं इनके ब्रेवरी में कमी आ सकती है। ये सब जो इनका एक लो पॉइंट्स कह सकते हैं मार्स का। अगर मार्स उच्च का होता है तो फिटनेस रहता है, फिजिकली एनर्जी रहती है, और जो है कि ब्रेवरी रहती है। हर चीज में ये आगे बढ़कर काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मुझे दीजिए मैं करूंगा। इस तरह से हम मार्स को देखते हैं। मार्स जो एक ब्लडी कहते हैं ना, ब्लड रिलेटेड मार्स, तो इस लाल किताब में भी इस तरह से उल्लेख है, आसमानी हत्यारा बोलते हैं, आसमानी हथियारा। तो ये जो रेड, है मार्स जो है ना, यस। इस तरह से चलता है। और इनका फिजिकली बहुत ही ज्यादा इनका जोर रहता है, जो कि रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? रविंद्र जी स्ट्रिंग सर, योर माइक इज नॉट ऑन, या प्लीज। ये जो मेडिकल सिस्टम आपने चंद्रमा का भी बोला ना, हॉस्पिटल
हॉस्पिटल, हेल्थ वगैरह। वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, चंद्रमा क्या है, बेसिकली वाटर एलिमेंट्स से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां, डिहाइड्रेशन, ओके, और वाटर रिलेटेड जो इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, mental health issues. So basically when you are talking about the mental health, then moon. When you are talking about physical health, then it comes Mars. Mars is basically blood in the body, right? You know, some females who are having issues, you know, मंगल अगर नीच का है उनका, तो हम उनको मतलब there are chances, proximity chances होते हैं उनको miscarriages होंगे, right? ब्लड की कमी होगी, menstruational periods में disturbance होगा, again Mars. So this is how you have to understand. ठीक है, एंड फॉर द मेन अगर आप मार्स को देखोगे तो मार्स बेसिकली गति है, गति, इट इज स्पीड, ओके। हनुमान जी वेंट टू हिमालय ब्रिंग द संजीवनी बूटी, ओके, तो स्पीड इज रिक्वायर्ड ओवर देयर, तो वेयर एवर स्पीड इज रिक्वायर्ड, व्हेन व्हीकल इज स्टैंडिंग इट इज शनि, व्हेन व्हीकल इज मूविंग ड्यू टू मार्स, राइट, व्हेन मूवमेंट इज देयर इन यू, then automatically your fire element get activated. Even if you talk about humans also, na, when there is a movement, you are in the morning, you get up, you go to the office, at that time fire is activated in you, movement come. But when you go and sit there and start doing your work, okay, start doing your work, at that time you are in rajas. And when you stopped your work and you are sitting idle, you are not doing anything, you are gossiping maybe, okay, that is tamas. So this is how you have to understand. Basically, movement. It is all about movement. अशोक जी मैं थोड़ा फास्ट ले जाता हूँ, I think so. हाँ, है ना? तो Let नहीं me go सर जी, little. जैसे कि रविंद्र सर जी ने कहा ना कि चंद्र से भी हम कहते हैं डॉक्टर कैसे होते हैं और मंगल से भी डॉक्टर कैसे हो गए, तो मैं इनका एक एग्जांपल दे देता हूँ, तब आगे निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो जैसे कि अभी चंद्र को मैंने कहा कि मेंटल स्टेबिलिटी होती है, चंद्र जो है इट इज डिनोटेड टू आवर मेंटल स्ट्रेंथ, हाउ यू आर। अगर समझ लीजिए कि एक डॉक्टर है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर, ठीक है। वैसे ही इसलिए मैंने कहा कि चंद्र में कोई भी आप अगर डॉक्टर को देखेंगे, वो डॉक्टर जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर एक सर्जन है तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो खून देखते ही बेहोश हो जाएगा तो ही इज नॉट अ डॉक्टर। इसीलिए चंद्र को हम कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर किसी डॉक्टर की कुंडली में आप देखेंगे तो चंद्र जो है 6th हाउस में नीच का पड़ा होगा या उच्च का पड़ा होगा, तो इससे हम ये कह सकते हैं ये अच्छा डॉक्टर है। अगर चंद्र अगर कहीं भी बैठा हो, अगर वो नीच का हो दूसरे घरों में, तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो मून ऐसे हम देखते हैं, इसलिए मैंने कहा कि चंद्र जो है हम उनसे कैरियर वाइज देखेंगे तो चंद्र उनके मेंटल स्टेबिलिटी को बताता है कि वो कितने स्ट्रांग है एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और मंगल को मैंने इसलिए मेडिकल फील्ड में सर जी ने इसलिए कहा कि मार्स उस मेडिकल फील्ड को गवर्न करते हैं। Right. So some of the questions are there. मोनिका जी आप बताइए पहले क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने एक्सॉल्टेड और डबलेशन का जब बताया था, आपने ये बोला था जैसे अगर सूर्य फर्स्ट राशि में है, मेष में, सूर्य कहीं पे भी बैठा हो, आप क्या आपका क्वेश्चन बताओ पहले, मैं फिर बताता हूँ आपको। नंबर लिखा हुआ है सूर्य और 17, वो एक्सॉल्शन एंड डेबिलेशन का पार्ट है, वो अभी हमने टच नहीं किया। डेबिलेशन का पार्ट है, लेकिन जैसे अगर आपने नंबर लिखवाया था फर्स्ट है ये मेष राशि नंबर 1 और 7th है हमारी ये लिब्रा। तो अगर सूर्य मेष राशि में है तो वो एक्सॉल्टेड होगा, और 7th में है, 7 में ही अगर, तो वो 7 में ही होगा। हाँ तो 7th राशि में डेबिलेटेड होगा, सिंपल है। यही थोड़ी कंफ्यूजन। हाँ ये कंफ्यूजन नहीं, यही है, ये जो सामने लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अमित जी आप बताइए क्या बोल रहे हैं? सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अशोक जी ने बताया कि चंद्र अगर अच्छा है, दे कैन गो टू डॉक्टर प्रोफेशनल और मेडिकल प्रोफेशनल्स। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र अच्छा है लेकिन मार्स जो है वो डेबिलेटेड है, नीच का है, जैसे आपने बोला कि मार्स अगर नीच का है तो वो प्रेरित कर सकता है टू डू मर्डर, बहुत ज्यादा नीच का है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें क्या हो सकता है? मैं जवाब दूं या आप लोग? अशोक जी बताइए।
अगर आप हाँ। कंफर्टेबल हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं जी बता जी, मैं बताता हूँ सर जी इनको। जैसे कि मैंने कहा ना कि दूं। चंद्रमा की जी स्थिति कैसी है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन चंद्रमा पे था, तो मैं ये बता दूं कि अगर चंद्रमा की स्थिति ऐसी मजबूत है कहीं भी, या कहीं भी डेबिलेटेड है, तो डॉक्टर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर मार्स अगर नीच का है तो कुछ मर्डर वाला सिचुएशन बनता है। देखिए, ये सिर्फ एक प्लैनेट से हम नहीं डिनोट कर पाएंगे ना, और वो किस हाउस में बैठे हैं, उनकी एस्पेक्ट्स कैसी हैं, ठीक उनका है। उनका लगन ये साइन भी देखना पड़ेगा, उनका लगन लगन साइन साइन का भी, क्वालिटी। क्योंकि वो अपने आप को कहाँ से देख रहे हैं वो, ठीक है। एक प्लैनेट, मैं ये बता रहा हूँ कि प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कैरेक्टर है इसका, ठीक है। अब 12 घर होते हैं और 9 राशियां होती हैं। तो हम एक प्लैनेट्स को लेके हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपका मंगल नीच का है, आप मर्डर कर सकते हो। नो, वी कैन यस नॉट। यस, क्यों? एक्चुअली यू हैव क्योंकि टू सी हर एक परम्यूटेशन प्लैनेट, एंड कॉम्बिनेशन, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करोगे। किसी की इंटेंशन अच्छी है, लगन साइन पावरफुल है, पॉजिटिव है, मंगल नीच का है, तो वो बेचारा मार खाएगा मंगल के घर, वो मारेगा क्या किसी को? तो यहाँ पर आप अभी एज अमित जी, अभी अभी देखिए, अपन ने पहला क्लास किया ना, तो आप इनको भी एज अ सिंपल जनरल प्रिंसिपल्स लीजिए। दीज आर ओनली जनरल प्रिंसिपल्स। बट जब इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे ना आगे, जैसे मैं आपको जब केस स्टडीज के अंदर लेके जाऊंगा, तो वहां पर आपको लगन साइन का सबसे पहले देखना है कि उसका पावर स्ट्रेंथ कितना है। अगर मेंटल स्टेटस उसका अच्छा है व्यक्ति का, तो उसको सही बताऊं तो किसी ग्रह से फर्क नहीं पड़ता। Am I right? तो ये आपको ऐसे समझना है कि पहली चीज तो गवर्निंग प्लेनेट की ताकत है, ठीक है ना। देखो, बुरा टाइम तो सब देख रहे हैं। कृष्ण भगवान पैदा होते ही मामा पीछे पड़ा था, जेल से बाहर निकाले गए, पानी में शेष नाग पर ऊपर उधर पहुंचाए गए, तो चुनौतियां कहाँ नहीं है? चुनौतियां सब जगहों पे है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। एवरी पर्सन हैज हिज ओन चैलेंजेस बिकॉज ऑफ हिज प्रारब्ध कर्म। बट पॉइंट इज दिस कि वेदर ही विल बी एबल टू फेस और नॉट। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो लगन साइन। और फिर ये जो बता रहे हैं जो अशोक जी, ये जनरल फीचर्स है, सिंपल, ये सिंपल जनरल फीचर्स है। ये प्रिंसिपल्स आप नोट करके रखो, इनको मैं कनेक्ट करूंगा अभी आगे की क्लासेस में। जब मैंने अगर आप ही का मंगल देखना स्टार्ट किया, तो उसमें से 10 बातें निकल के आएंगी। आपका मंगल आपके ब्लड को रिप्रेजेंट कर देगा, आपका मंगल आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, आपका मंगल आपके बात करने के तरीके को रिप्रेजेंट करेगा। अगर फायर बढ़ गई, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी टेंड टू बी मोर एक्सप्रेसिव एंड समटाइम्स एग्रेसिव, राइट। ये सब चीजें ऐसे निकल के आएंगी आगे, मगर वो दृष्टियां संबंध आएंगे ना, तो उसमें सब चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। ये मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप एज जनरल प्रिंसिपल्स एक बार नोट करो, ठीक है ना। थैंक अशोक यू। जी, थोड़ा सा फास्ट लेके जाओ आप क्लास को, अब ठीक टाइम कम है, थोड़ा सा फास्ट ले जाओ, राहु गुरु एंड फटाफट से बताओ। ठीक है सर। तो एंड थोड़ा कम बता के थोड़ा सा करो, बाकी मैं आई टेक इट अप। ओके ओके सर जी। या तो नेक्स्ट राहु। प्लैनेट राहु। राहु तो एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, सबको पता है, क्योंकि इनका बॉडी नहीं है, सिर्फ हेड है, और ये अपने हेड से ही सोचते हैं। तो इनका ये कह सकते हैं कि ये प्लैनेट एक इल्यूशन है, मतलब एक सोच है ये, कि ये एक छाया ग्रह, अगर एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो ये एक छाया ग्रह है। तो इसकी वो अभी आजकल की लाइफ में, डे टू लाइफ में, दिस प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो ये जो है, ये जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स, इंटरनेट, वेबसाइट्स, वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी प्लास्टिक चीजें हैं, सब राहु गवर्न करते हैं। तो डे टू लाइफ, मतलब मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल में जो है ना, राहु बहुत चल रहे हैं। आप किसी को भी देखिए, फोन से हैं तो मेंटल इश्यूज, ठीक है। तो राहु को मैं इस तरह से देखता हूँ, प्लास्टिक जितने भी हैं आपके आसपास, जितने भी प्लास्टिक्स हैं, दिस इज ऑल गवर्न बाय राहु। और राहु हमारे अगर उच्च का हो जाए, तो उस जातक को बहुत अर्थ से जो है कि ऊपर तक लेके चला जाता है, या ऊपर से नीचे गिरा देता है। इनकी मेंटल स्टेबिलिटी को हिला देता है, एक जातक की, एक व्यक्ति की। हम राहु से राइट। ऐसे देख सकते हैं। या अगर राहु अगर अच्छे हाउस में बैठा हो, जैसे कि 8th हाउस, अगर राहु 8th हाउस में बैठ जाए, तो उस बंदे की या उस जातक की कहेंगे कि लॉटरी लग सकती है। आकस्मिक जो पैसे होते हैं लॉटरी वाली, वैसे मिल सकता है। ये हम राहु से देखते हैं। और राहु तो कह लीजिए कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिस प्लैनेट के साथ रहेंगे उस प्लैनेट्स का साथ चल देंगे। तो ये या हो गई। एक्चुअली एक्चुअली इसमें ये लॉजिक ये है इसके पीछे, राहु डज नॉट हैव हिज ओन बॉडी। जी राहु इज नॉट एलोकेटेड और लिंक्ड विद एनी सेलेस्टियल बॉडी।
जी वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है अर्थ का, जिस प्लेनेट के जिस राशि में बैठेंगे, जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे उसके जैसा बिहेवियर उसका करेंगे। राहु बेसिकली ध्यान है आपका। आज की डेट में अभी भी आपकी कुंडली में राहु जहाँ पड़ा है आपका ध्यान वहीं पर है। अब वो जो 12 डायमेंशन जब मैं बताऊंगा आपको जो होती हैं, तो राहु इज ध्यान, इस बात को आपको समझना है। तो आज की डेट में भी आपका लाइफ का पूरा इंक्लिनेशन जो रहेगा ना, अब कोई आदमी ऐसा है जो पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो राहु ध्यान है उसका। कोई आदमी का अगर राहु मान लीजिए 8वें घर में बैठा है, ठीक है, तो उस वो रिसर्च में डूबा हुआ है, उसकी पूरी लाइफ रिसर्च में बीत जाती है, ठीक है। तो राहु 11वें घर में बैठा है, वो आदमी सारी जिंदगी पैसे कमाने की, मतलब बाकी ठीक है, उसके साथ ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठे हैं, अनऑस्पिशियस बैठे हैं, या फिर वो शत्रु क्षेत्र राशि में बैठा है, वो फैक्टर्स बाद में चेक करते हैं, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे देखेंगे। बट राहु इज योर बेसिकली इट इज अ शैडो प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज, इट इज स्मोक। आप इसका रेमेडी भी करोगे, ये बार बार इसकी रेमेडी आपको बार बार करनी है, मतलब एक बार करके कोई राहु की पूजा करके आप इससे बच नहीं सकते हो, ये नहीं परमानेंट शांत हो गया। राहु को इसीलिए चलते पानी में बहा दिया जाता है, क्योंकि राहु चंद्रमा से डरता है। चंद्रमा ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी विष्णु जी को, तो चंद्रमा से वो डरता है। तो राहु को अगर कैप्चर करना है ना, तो इमीडिएटली थोड़ी देर के लिए होगा, आगे जाके फिर वो मायावी पानी से बाहर निकलेगा, कोई और माया लेके आपके पास पहुंच जाएगा किसी और फॉर्मेट। ये राहु का स्वभाव है। राहु कम बैक, बिहेव लाइक पाकिस्तानी सोल्जर, ठीक है ना। एक बार चला गया, 2 घंटे बाद फिर आएगा, तो फिर उपाय करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको करना है। तो राहु की रेमेडी 3-3 महीने में रिपीट करो, देन इट विल वर्क, ठीक है ना। फर्दर वी गो हेड विद द गुरु। अशोक जी बता दीजिए थोड़ा सा। जी सर जी, गुरु गुरु पे चलते हैं। तो गुरु एक मेल प्लैनेट है, और इनकी जो एलिमेंट्स होती है, इनका भी एलिमेंट वाटर ही होता है, और ये कफ के कारक होते हैं, जैसे कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को गवर्न करते हैं ये। और गुरु जो है इट रिप्रेजेंट्स रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, फेथ, होप, ऑप्टिमिज्म जो होते हैं, काइंडनेस। और इनको अगर देखें, अगर हो चुके होंगे तो फिलोसोफर हो सकता है कोई आ जाता है, क्या कोई टीचर हो सकता है, क्रिएटिविटी में हो सकता है, कोई इंटेलिजेंस में हो सकता है। इस जातक के जिसके अंदर जुपिटर हाई होती है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, वो हायर लर्नर्स तक बन सकते हैं। वो जो भी इनकी लर्निंग एबिलिटी होगी बहुत ही अच्छी होगी इनके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट व्यू से। और अगर ये कहीं ना कहीं अगर लैक हो जाए जुपिटर, जिसके कुंडली में अगर जुपिटर नीच का हो जाता है, तो कह लीजिए कि उसका होप जो रहता है, जो जो भी चीजें करना चाहेगा, उसका होप बहुत लेस रहेगा, उसकी मोरल बहुत लेस रहेंगी, और उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा एज ए स्टूडेंट्स अगर कह लीजिए, और एज ए वर्कर कह लीजिए, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी चीज में। और ये जो है इनके कारक जो जातक होते हैं जुपिटर के, उनके लगन साइन में अगर जुपिटर बैठा हो, वो बहुत अच्छे डिसिप्लिनरी से रहेंगे, डिसिप्लिन वाले रहेंगे, जब तक उनके ऊपर किसी की दृष्टि ना पड़ जाए खराब ग्रह की। ये हो गए जुपिटर। अब सैटर्न पे चलते हैं। सैटर्न जैसे कि सबको पता है कि एक मारक प्लैनेट है, और इनकी कोई कोई कहते हैं कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं रहती है, 7वीं की ढैया अच्छी नहीं रहती है। तो मैं ये कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मेल प्लैनेट है, और ये जो है गवर्न करते हैं 2 राशियों को, मकर और कुंभ के। और इनके एलिमेंट जो होते हैं वो है वाता, ठीक है, वात को लेकर चलते हैं यस जी। और ये अर्थ एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो जैसे कि मेरा लो है, सर ने कहा तो पहले, नहीं, तो वो थोड़ा स्पीड को एक्चुअली आप लोग ज्यादा जो कहते हैं ना, अर्थ एलिमेंट वाले लोग ज्यादा मैनेज्ड होते जी हैं, सैटर्न वाले ज्यादा मैनेज्ड हैं, वो धीरे चलते हैं, मगर उनका डिसिप्लिन बड़ा परफेक्ट, ठीक है ना। बट हम लोग वो थोड़े फायर वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, फायर वाला क्या बोलता है, जल्दी बता यार, तो ये मेरे को मेरा नेचर, जल्दी बताओ यार, ऐसा रहता है फायर वालों के साथ। तो ये एलिमेंट आपको देखेंगे, आप लोगों को अपने किसी दोस्त को जज करना, अमित जी आप मृत्युंजय जी को जज करो, और ये आपको करेंगे। एलिमेंट देखो एक दूसरे के क्या है, ठीक है ना। कोई ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, कोई कोई धीरे धीरे बोल रहा है, कोई सोच के बोल रहा है, तो ये एलिमेंट्स है, इनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो बात इन्होंने अभी जैसे 15-20 मिनट आधा घंटे से जैसे बता रहे हैं, ये बात मैं आपको 5 मिनट में कट खोल के सब बता देता, अगर मैं इसको कर रहा होता था। मगर कोई बात नहीं, वो मेरा एलिमेंट है,
दिस इज हाउ यू ऑफ्टन मतलब मेरे एलिमेंट के लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, वो कहेंगे क्या यार बंदा सही पढ़ा रहा है, मगर जो जल है जो एयर है वो कहेंगे यार धीरे बोलो, रुको। ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। अपने बैच, जब अपने बैच में ये लोग इनकी डिस्कशन क्लासेस भी होती हैं, जो आप लोगों की इस वीक से शुरू हो जाएंगी, तो उसके अंदर अशोक जी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट पर्सन हु डिस्कस वेरी इलैबोरेटेड, ठीक है ना, वो वाली चीज। अशोक जी बताइए आगे। शनि, तो शनि थोड़ा जी धीरे चलता है, 2.5 साल का मूवमेंट है एक राशि, जी। धीरे धीरे मूव और करता है। हाँ, शनि जो होते हैं वो थोड़े डिसिप्लिनरी वाले होते हैं, कि जिनकी जातक पे अगर देखिए कुंभ या मकर का जातक होगा लगन में, तो वो डिसिप्लिन से रहते होंगे और मैनेजमेंट से रहते होंगे, बहुत ही जस्टिस का कारक माना जाता है। जो कि जैसे शनि की महादशा शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि उस जातक की जितने भी पुराने कर्म हैं उनका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो शनि की महादशा में जातक बहुत अच्छा भी कर जाता है, या बहुत ही आप देखे होंगे आपके आसपास भी ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत अच्छे खासे पोजीशंस में रह के फिर लास्ट में उनकी महादशा शुरू होती है तो नीचे गिर जाते हैं, दे लॉस्ट। तो ऐसे भी हो सकता है। ये महादशा जो शनि है ये कार्मिक को दर्शाते हैं, उनका कैसा कर्म थे प्रीवियसली, उनके पास्ट में कैसा कर्म था, ये कार्मिक प्लैनेट है। और इनका अगर कह लीजिए अगर वीक हो जाए तो दैट पर्सन विल फेस लाइक डिसिप्लिन पे इनपेशेंस, हार्ड वर्क करने में उनका मन नहीं लगेगा, घर में बैठे रहेंगे और जजमेंटल हो जाएंगे, किसी को जज करने लगेंगे पहले। अगर आपको देख लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर शनि नीच है ना, तो आप अगले पर्सन को जज करेंगे कि ये पर्सन अच्छा नहीं बोल रहा है, इज नॉट गुड, वो जजमेंटल हो जाता एस्ट्रोलॉजर्स है। को खासकर सचेत रहना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तु वालों को, ऐसे क्लाइंट्स से, क्योंकि जी, सैटर्न गवर्न लोग जो होते हैं बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, दे डोंट क्रिटिसाइज बिलीव करते आल्सो एंड डोंट अलाउ पीपल टू बिलीव, हैं, या दे ऐसा बिकम रहता है। जजमेंटल, दे बिकम जजमेंटल। मुझे जज करना है ये बंदा सही है कि नहीं, जिसका भी शनि नीच का है। तो इस तरह से जॉइंट पेन्स भी दे सकता है अगर बॉडी पार्ट्स में चले जाएं, बोन्स, नर्व्स, फ्रैक्चर्स। और अपनी स्टैमिना को देखता है कि कैसा है इसकी स्टैमिना, अगर वीक है तो वीक है, अगर बेनिफिक प्लैनेट अच्छा है, उच्च का है शनि, तो उसकी स्टैमिना बहुत अच्छी है। तो शनि हो गए। अब नेक्स्ट मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी जो कि एक कह लीजिए कि प्लानिटरी लैंग्वेज, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कह लीजिए कि मेर्क्यूरी बुध जो होता है ये राजकुमार है, राजकुमार माना जाता है। और बुध जो है शनि सूर्य का पुत्र भी कह सकते हैं, एक तरह से पुत्र के जैसा देखता है। तो ये एक बुध ऐसी प्लैनेट है जो सूर्य की रोशनी से जो है अस्त नहीं होता है, हमेशा सही रहता है। बाकी सब प्लैनेट अस्त हो सकते हैं। और मेर्क्यूरी जो है अपनी बॉडी एलिमेंट्स में अगर देखेंगे ये बात को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अर्थ एलिमेंट्स को। और इट्स के रिजल्ट आप कह लीजिए अगर वीक है, अगर ये वीक प्लैनेट है आपकी उसमें कुंडली में, तो ये आपको क्रिएटिविटी से दूर रखेगा, आपकी मेंटल मोरल जो है लो कर देगा, आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपके नर्व्स इश्यूज होने लगेंगे, ये सब बॉडी के पास आते हैं। स्पीच में डिसऑर्डर्स कर देगा, बहुत सारे मतलब हमारे बॉडी से स्किन डिसीजेस भी ला सकता है ये कहीं ना कहीं। अगर बेनिफिक हुआ तो ये क्विक लर्नर हो सकता है, जहाँ तक किसी भी डिबेट में अगर ये चला जाए तो जीत करवा आता है वो। मतलब इसकी वाणी जो है एकदम मधुर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छा रहेगा, जीत सकता है, कोई भी डिबेट करे कहीं भी बैठे, वी कैन विन। तो थैंक यू। केतु, या केतु, सर जी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अरे हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी सारा कवर देने वाला हूँ, मैं कवर दूंगा। आप जी केतु को बहुत फिनिश सारा है, कर लो। मैं पॉइंट्स को अरे वो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, आई कैन खाते अंडरस्टैंड, जा है रहा तो हूँ, बहुत क्योंकि सारा। ये मेरा, मैं जो बहुत टाइम अरे लेके पढ़ाता गो हूँ ये। अहेड यार, गो अहेड, कंटिन्यू। अभी आपको जो ये पूरा इन डेप्थ डिटेलिंग वाला सेशन है, ये रविंद्र जी और ये जो नया ग्रुप में आपको मैं आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू एज ए कोऑर्डिनेटर, वहां पर आप लोग ये पूरा जो डिस्कशन का जो मॉडरेट करना है वो मेरे साथ आप करना, तो क्योंकि आपको आप करना ये वो काम। बीच बीच में काट के पढ़ाना ये मेरे अरे नो स्वभाव के प्रॉब्लम, नो खिलाफ है। प्रॉब्लम, कंटिन्यू ना, कंटिन्यू करो। सब नए अ, हैं, सब फ्रेशर है, नॉलेज इज ऑलवेज वेलकम। मैं खुद आज की डेट में बार बार जब बुद्ध को पढ़ता हूँ, मैं तो कम से कम हजारों बार पढ़ चुका हूँ, एक एक प्लेनेट को पढ़ता हूँ ना, तो और खिड़कियां खुलती हैं। एक एक कुंडली पे आप पूरी लाइफ बता सकते हो, यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ ऑन योर ओन। और उसको ये 12 घर आपसे डिकोड नहीं होंगे, इनके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इनकी दृष्टियां हैं, इनके ऊपर कौन सी दृष्टि पड़ रही है, उच्च की पड़ रही है, नीच की पड़ रही है, मगर उससे कंफ्यूज नहीं होना।
हम तो सिंपल वे में जाएंगे, हमें हमारी कुंडली में सबसे पहले हमारे को डिकोड करना है। आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी लेयर वाइज अपनी पूरी खुदाई कर दोगे बॉडी की, इतना आपको खोल देंगे, ठीक है ना। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी 1 मंथ, सब कनेक्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे बताओ आप केतु। सर अशोक जी को हमारे सेशन में ले आइए सर। हाँ हाँ, वो आप ही की बात कर रहा हूँ जी, आप ही के लिए बात किया मैंने। आप ही के सेशन में हम लोग इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, बल्कि पूर्णिमा जी को भी करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। आई एम ओपन टू इट, वी विल डू दैट। या क्या बताइए सर, केतु का बता दीजिए। हाँ जी, केतु जैसे कि केतु भी एक छाया ग्रह है एज एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें, और ये फायर को डिनोट करता है क्योंकि बॉडी पे, और पित्ता वाता ये दोनों को कवर करते हैं। ये केतु ऐसे ही प्लैनेट है जो दो चीज को लेकर गवर्न है। और इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर केतु इनका उच्च का है तो वो जातक जो है अकल साइंस में अच्छा रहेगा, पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल ग्रोथ और साइकोलॉजिकल फील्ड्स में भी अच्छा ग्रोथ कर पाता है वो। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी किसी भी चीज को सीखने की, वो बहुत अच्छी रहती है। और अगर ये कहीं अगर वीक हो गया ये प्लैनेट उनकी कुंडली में, तो ये डिटैचमेंट दे देता है किसी भी चीज के लिए। अगर ये 4th हाउस में बैठ गया तो फैमिली, अगर 1st हाउस में बैठ गया तो अपने आप से, अगर 11th हाउस में बैठ गया तो पैसों से डिटैचमेंट दे देता है। किसी भी जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस का जो है उस जातक को डिटैचमेंट दे देगा। ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी कारक हो सकता है और फियर का भी कारक हो सकता है। किसी भी एक चीज के लिए इनका फोबिया हो सकता है, जिस हाउस में बैठेगा उसके फोबिया हो जाएगा। हेलुसिनेशंस दे सकता है ये, किसी भी चीज को ये डिले कर देगा। कोई भी चीज अगर होने वाली रहेगी उस चीज को ये डिले कर देगा अगर नीच का हो गया तो। लॉसेस हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेट्स आ जाती हैं, डिसीजेस क्रिएट हो जाती है, अननोन डिसीजेस जिसका कोई डायग्नोज नहीं होगा। आपको दर्द होगा, आप जाके डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे, यू कैन नॉट फाइंड, बिकॉज वो केतु का कारक है। कैंसर्स हो सकते हैं, कैंसर का भी कारक, जैसे कि कैंसर कभी मिलेगा नहीं, इनके 3rd स्टेजेस होते हैं, 1 to 3 स्टेजेस में नहीं, 3rd स्टेज जो फाइनल स्टेज होगा तब जो है इनको बॉडी में पता चलेगा कि मुझे कैंसर हुआ है। केतु ये सा भी कारक बन सकता है इनके मैलेफिक होने से। राइट तो लास्ट प्लैनेट वीनस, जो कि आकर्षक होता है, लग्जरियस का कारक होता है, और ग्लैमरस, कंफर्ट, प्लेजर्स, टेस्ट एडिक्शंस। आप ये कह सकते हैं वीनस से जो होता है कि टेस्ट एडिक्शन दे देता है। आपको खाने में, आपको फूडी बना देगा। अगर ये 2nd हाउस में बैठ गया, फूडी बन जाएंगे आप। सेंसुअलिटी को दिखाता है, आप सेंसिटिविटी कितनी है, फेयर कितने हैं, डिप्लोमेसी, जस्टिस ऑन इमोशंस, कैसे आपके काम कर रहे हैं। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो वीनस जो है वाटर एलिमेंट है, और एक लेडी स्त्री कुछ है, ये फीमेल प्लैनेट कह सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। और वीनस गवर्न करते हैं एंटरटेनमेंट फील्ड्स लाइक राइटर, पोएट, डांसर, फैशन मॉडल्स, डिजाइनर्स, प्रोफेशनल्स, और मूवी इंडस्ट्रीज। जितने भी एंटरटेनमेंट फील्ड है जहाँ पे भी आप देखेंगे आवाज हो या कहीं कुछ भी हो, जहाँ पे एक टैलेंट का यूज होता हो, वो एक ये वीनस जो है टैलेंट को ग्रोथ करता है। वीनस प्लैनेट एक आदमी के अंदर जो हिडन टैलेंट्स है उसको बाहर निकालता है। अगर ये वीक है तो वो बंदा जो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाएगा अपने, ये टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक अगर अच्छा लगन में बैठा हो वीनस तो वो जातक अट्रैक्टिव हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, डिप्लोमेटिक, इमोशनल भी थोड़ा बहुत होगा अगर उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो, केयरिंग हो सकता है, कंसर्न्स हो सकता है किसी के लिए, किसी पे भी, लेडीज के प्रति तो जा खासकर। अगर मेल जातक के अंदर वीनस उच्च का है तो वो लेडीज का केयर ज्यादा करेगा, अगर फीमेल के अंदर ये उच्च का है तो मेन का करेगा। तो सर जी राइट राइट। ये वीनस का हो सार गया सार ये बनता है कि सबको जो है कुछ के शुक्र वाली वाइफ ढूंढनी चाहिए, जी। है ना। जाते हैं घर में। एवरीवन शुड सर्च a wife who is having exalted Venus. सर वो सब भगवान ने वैसे बनाई नहीं है ना एक सी। डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई है भगवान ने, मेल फीमेल दोनों में, बहुत सारे। राइट राइट राइट। ये आप जितनी भी बातें बोली हैं ये आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ठीक है। आप चाहें तो इनका फोटो खींच लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा इनको। राइट, आपकी स्क्रीन पे सब कुछ लिख दिया गया है साथ साथ नोट्स के तौर पे। यू कैन टेक अ फोटोग्राफ आल्सो
एंड मीनवाइल अभी एक काम करते हैं, निधि जी आप चाहो तो स्क्रीन ऑफ कर दो, मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ सो दैट, और क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ सारे के सारे. So guys, now over to you. First, you clarify your doubt. Whatever is being delivered to you till this point, are you able to, connect with the things? आपकी लाइफ के 12 डायमेंशंस के साथ अभी ये लिंक हो जाएगी. This horoscope will speak like a mirror, right? So that is the best part. That is the best part. Even तक आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट कब हुआ, अगर कोई अभी चेक करना हो आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इवेंट या पॉजिटिव इवेंट हुआ, तो उस समय अपनी विंशोत्तरी दशा जाके चेक कर लो. वो प्लैनेट्स जो है आपके अच्छे हाउसेस से बिलोंग कर रहे होंगे या कुंडली में एक्सॉल्टेड होंगे. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट विद द थिंग्स. ये सब जो है सब डिमार्केशन किया जा सकता है. या प्लीज कोई पूछना चाहता है कुछ क्वेश्चन तो बताइए. गुरुजी क्वेश्चन है, पता नहीं मतलब मैं वैसे ही सोच रहा था बैठे बैठे. जी बताइए. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है सब, जैसे वीनस सेकंड और सेवेंथ राशि को गवर्न करता है. तो अगर किसी हाउस में सेकंड राशि में वीनस बैठा हो और किसी और हाउस में सेवेंथ राशि हो, तो जो दूसरी सेवेंथ राशि है जिसको वीनस गवर्न करता है, वीनस उस पर कोई इम्पैक्ट डालता है क्या, या हम उसको कुछ नहीं समझते? नहीं, डेफिनेटली उसको समझते हैं. अगर वीनस अगर अच्छा हो गया ना, तो उस केस में वो जो दोनों राशि है ना, उनका फल जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही अच्छा हो जाएगा. अगर वीनस उच्च के हो गए या वीनस मित्र राशि में आ गए ना, अपनी राशि में आकर जैसे वो बैठे, आप यहाँ पे ऐसे समझिए, तो अपने घर में तो आप स्ट्रांग हो ना. आप अपने घर में कैसे हो, स्ट्रांग हो, तो आपका वो हाउस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है. और एज वेल एज वीनस जिस घर में बैठा उस घर के ऊपर भी वैसे इम्पैक्ट डाल देगा. ठीक है ना. इम्पैक्ट जो होंगे डबल होंगे. ठीक है ना. मान लो आप ऐसे समझ लो, ये पूरा एक ही स्पेस है, एक ही स्पेस है. ठीक है ना. आपका जो कुंडली है वो एक इकोसिस्टम है. आपको ऐसे समझ के मैं कुछ और मैं ये पूछ रहा था, सपोज जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस में वीनस सेकंड राशि में बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, और एट्थ हाउस में सेवेंथ राशि बैठी हुई है जो वीनस की राशि है. बिल्कुल. तो, लेकिन उस हाउस में कोई ग्रह नहीं है. हाँ, नो प्रॉब्लम विद तो दैट. यहाँ बैठा हुआ वीनस उस हाउस को भी कुछ इफेक्ट दे सकता है? डेफिनेटली करेगा ना, डेफिनेटली करेगा. हाँ, ऐसे केस में क्या होगा, जब फोर्थ हाउस के अंदर वो जाकर बैठता है ना, पहली बात तो वो 8वें घर का लॉर्ड हो गया तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है. ऐसे में माँ के जो है जल्दी जाने के कभी कभार चांसेस हो जाते हैं. और सुखों की जो वृद्धि होती है, जो सुख होते हैं ना उस बंदे की जिंदगी में, 32वें साल के बाद एक्टिवेट होंगे. 32 तक अवस्था होती है. 32 से पहले उसको जो वो ड्यू बेनिफिट्स मिलने हैं. अब फोर्थ हाउस क्या है, माँ है, सुखेश है, सुख है. और फोर्थ हाउस आपके व्हीकल्स हैं. फोर्थ हाउस आपका जद्दी प्रॉपर्टी, घर, आपकी लग्जरी कार, आपके कंफर्ट जोन, सब कुछ है. मगर ये सब एक्टिवेट कब होंगे, 32वें साल के बाद होंगे, बिकॉज वो 8th हाउस का लॉर्ड भी हो गया. तो 8th हाउस क्या है, 8th हाउस जो है बेसिकली, इसको इनडायरेक्टली देखोगे तो पाताल बोला जाता है. अभी मैं आपको सारे जोन्स क्लियर करूंगा आगे जाकर. ये पाताल बोला जाता है. इसके मिट्टी के नीचे जब थोड़ा गहरे उतरोगे तो शनि की वो टेरिटरी शुरू हो जाएगी. ऊपर टॉप पे मिट्टी जो है वो शुक्र है. ठीक है ना. नीचे ये जो पूरी भूमि आपको दिख रही है, भूमि मंगल है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो 8th हाउस जो होता है वो रिसर्च का हाउस होता है. 8th हाउस जो होता है आपके मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस होता है. आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी वो रिप्रेजेंट करता है. और 8th हाउस जो है स्पिरिचुअल लिबरेशन का हाउस है. ठीक है ना. तो उस तरह के इम्पैक्ट आपको ये देगा. और ये 4th हाउस में बैठा है तो वहां पर जाकर 8th हाउस का लॉर्ड भी होने के कारण अपनी राशि में भले ही बैठा है. ये प्रैक्टिकली अभी मैंने एक केस स्टडी ली थी, आप लोगों को उसको वीडियो भी दे दूंगा. मैंने कल परसों जो क्लास करा था पूर्णिमा जी और के साथ, पता नहीं किनके साथ एक क्लास किया था मैंने, उसमें ये प्रैक्टिकल केस स्टडी लिया था. पूर्णिमा जी के साथ किया था, मैंने बताया था वहां पर. ठीक है ना. तो यही केस था एग्जैक्टली जिन्होंने बताया. 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठा. मदर जो है उसकी 16 साल की उम्र में चली गई. कंफर्ट जोन्स अब एक्टिवेट हुए. नाउ दैट लेडी इज 40 इयर्स. अभी 32 के बाद, मैंने पूछा आपका 28 के बाद आपका सारा जो है कंफर्ट जोन एक्टिव होगा. 28 से 32 के बीच में, 32 से एक्टिवेट होना स्टार्ट हुआ. और मैंने बोला जब तक आप 36 तक पहुंचोगे और अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा. तो ये जो इवन तक लगन है, इसकी लगन साइन क्या बनी, लिब्रा लगन साइन बन गई है वाली. ठीक है ना. तो इससे पता लगता है मृत्युंजय जिस कुंडली के बारे में पूछ रहे हैं वो लिब्रा साइन का बंदा है ना. ये आप देख लीजिए, लिब्रा साइन. नहीं सर, मैंने ऐसी हाइपोथेटिकली पूछा था. आप हाइपोथेटिकल पूछे, पर मैं आपको सारा वो बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार से होगा. ठीक है ना.
एनीवेज आगे बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर अशोक जी ने एक बात कही, व्हेन ही केम टू सैटर्न ही सेड कि एक मारक ग्रह है। व्हेन वी से मारक, व्हाट इमेज डज इट इमेज एग्जैक्ट? इमेज खराब है, इमेज खराब है। एक्चुअली बात क्या है, सैटर्न जो होते हैं ना बेसिकली स्ट्रिक्ट बहुत है, तो स्ट्रिक्ट होने के कारण उनका इमेज ऐसा है। और दूसरी बात, सैटर्न जो है वो कुछ जो, एक तो अपने लगन साइंस को हमेशा 7.5 और 2.5 में बेनिफिट करते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही एथिक्स को प्रोनाउंस करते हैं, खुद ही जस्टिस को प्रोनाउंस करते हैं ना। दूसरा लिबरल्स यानी कि तुला लगन के लोग, और तुला लगन क्या है, गुरु का उनके पूरा अच्छा उनका वो है कॉम्बिनेशन, शुक्र और जो सूर्य है ना, वो सॉरी ये शनि है ना, ये गुरु शिष्य है आपस में, इनके आपस में ट्यूनिंग बहुत फाइन है। तो जो शुक्र है ना, शुक्र का जो दोनों लगने हैं, 2 और 7 नंबर लगन है उसकी, वृषभ है और 7 नंबर है, उनके केस में जो शनि होता है वो कारक ग्रह की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज अ प्लैनेट ऑफ गिविंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब टॉरस लगन साइन के अंदर, ध्यान से सुनो, टॉरस लगन साइन के अंदर ये 4th और 5th हाउस का लॉर्ड हो जाएगा, यानी कि सुख और एजुकेशन वो देगा दबा के। और जब आप बात करोगे तुला लगन के, सॉरी तुला लगन के केस में ये होगा, सॉरी, और जो आपको टॉरस वाला बता रहा हूँ, टॉरस वाले केस में ये 9th और 10th हाउस का लॉर्ड होगा, 9th और 10th, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई टॉरस लगन का है, ये निधि जी हैं, इनसे पूछो, ये कुंडली देख के बताएंगे कि इनका जो है टॉरस लगन है, इनके जो 9वें और 10वें घर में कौन सी राशियां बैठी हैं, तो ये देखेंगे वहां पे 10 और 11 नंबर बैठी हैं। और इसी तरह तुला लगन का मैं खुद दूं तो आपको इसलिए ज्यादा बेटर बता रहा हूँ, क्योंकि गिनोगे ना 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11 आते ही यहाँ पर इन 2 हाउसेस को एक्वायर किया, चौथा हाउस और 5वां हाउस, ठीक है ना। चौथे 5वें हाउस का जो है कनेक्ट बना देते हैं। तो जिसके पास पब्लिक में इमेज है, जिसके पास आप ये कह लीजिए कि 4th हाउस पब्लिक इमेज का भी होता है, आपके पब्लिक यश को भी रिप्रेजेंट करता है, और एज वेल एज 5th हाउस एजुकेशन, जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज इज पावर, तो ये शुक्र को ऐसे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसको नॉलेज देता है, ठीक है ना। ये दिस इज हाउ माय सैटर्न, इन माय केस इफ यू आस्क, माय सैटर्न इज कनेक्टेड विद राहु एंड गुरु इन द 11th हाउस, दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू। ओके, व्हेन आई टीच यू, 11th house is my income source. I got my, my systems are being run with my this kind of work. तो गुरु ने टीचिंग का एलिमेंट दिया, सैटर्न खुद बैठा है, सैटर्न जस्टिस का है, तो किसी को गलत गाइड ना करना इज इन माय कोर प्रिंसिपल्स। मुझे समझ नहीं आई कुंडली में बोल दूंगा, मुझे नहीं आ रही सर समझ, मुझे एक दे दीजिए, बट आई विल नॉट कम्युनिकेट एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाता सैटर्न, ठीक है ना। तो सैटर्न खुद जस्टिस प्रोवाइडर है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और राहु, राहु इज अगेन मिस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेस। मैं तो बहुत छोटी एज में बहुत बड़े बड़े पंगे लेके निकला हूँ, बता रहा हूँ 2002 का पास आउट हूँ मैं फॉर्मली, ठीक है ना। ये 16 साल से मैं इसमें ऐसा उलझा राहु के कारण, मेरी पूरी एजुकेशन ऑकल्ट साइंस में गई है। ओके, इनफॉर्मल भी उस समय, एक्चुअली इनफॉर्मल ज्यादा थी हमारे टाइम, फॉर्मल था नहीं इतना सिस्टम। एक ले दे के इंस्टीट्यूट था इंडिया में, डॉक्टर बीवी रमन का, उससे पास आउट। तो दिस इज हाउ, और उसका पेपर आप सोच नहीं सकते कैसा हो। वो तो मैं लेवल अभी धीरे धीरे वी विल डू इन द एडवांस कोर्सेज, बट उसका पेपर में वो सीधा कि आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस देगा और आपको बोलेगा चलो इसको सॉल्व करो, 12 के 12 अगर बांचो इसके बैठ के। फिर आपको विंशोत्तरी दशा पर रिजल्ट पूछेगा, तो वो 5 कुंडलियां लेते हैं, जैसे हमने सिस्टम रहता है, 5 कुंडलियां आपको देंगे हम, 5 केस स्टडीज आप पूरी बनाओगे। ये तो पास होने के लिए क्राइटेरिया है, वैसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आगे तक भी नहीं छोड़ता। मैं तो कह रहा हूँ कंसल्टेंसी करो, मैं साथ करूंगा, तुमको लाइव सिखाऊंगा, ठीक है ना। आप काम करो, मैं आपके साथ काउंसलिंग लूंगा, आप सीखोगे। मैं ऐसे ही सीखा हूं अपने फादर के साथ बैठ बैठ, ठीक है ना। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू लर्न। आपको भी उस हिसाब से सीखना पड़ेगा, और यू हैव टू लर्न द बिहेवियर ऑफ योर क्लाइंट आल्सो। देखिए आप लोग सब आस्थावान लोग हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था नहीं भी है, तो दे मे इंसल्ट यू इन मेनी वेज, दे मे टेस्ट यू, दे मे आस्क यू अग्रेसिव अननेसेसरी क्वेश्चंस। ओके, बट बात करनी है फिर मेरे से करें, मेरा बहुत उच्च का है, मैं बात करूंगा, ठीक है ना। बात करनी है मुझसे बात करें, मैं समझाऊंगा, एक एक चीज को लेयर वाइज खोल के बताऊंगा, ठीक है। यही जिंदगी भर किया और कुछ नहीं किया अभी तक, यही है अपना काम और कुछ नहीं काम नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड।
आपको मैं तो मतलब डाटा लेके सारे दिन कई बार, मतलब तो खैर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये कह लीजिए पिछले 10-12 साल से सिचुएशन ऐसी है कि रोज की 5-7 कुंडले तो नए नए केस आते ही निकल के। फिर अब ये है कि सिम्टम्स जज करने, सिम्टम्स क्या है, अब ज्यादा डीप उतरेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो मैं जो पढ़ाता भी हूँ ना आप लोगों को, वो जो सारी इनपुट्स दे रहा हूँ ना मैं, वो आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। काउंसलिंग करना, हीलिंग करना सीखो। हील पीपल, ट्रांसफॉर्म पीपल। उनकी लाइफ एक की भी चेंज कर दी ना, वो बोलेगा ना कि भाटिया जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी और आज 3 महीने हो गए, अब वो पता नहीं इश्यूज कहाँ है। जब आपको आके ये कोई बंदा बोलेगा ना, देन यू विल रियलाइज दैट थैंक्स, जो आपको ग्रेटिट्यूड, जो ऊपर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी भगवान से, यू कैन नॉट इमेजिन। किसी दोस्त को भी हेल्प करो, पैसा इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। क्योंकि मेरे को बस अभी ऐसे भी फोन आने लगे हैं, कहीं एक आधी जगह से आए हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि सर आप मार्केट की धज्जियां उड़ा रहे हो, आपको इतने कम में नहीं करना चाहिए, 70-70 हजार के प्राइसेस हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा भी बोला गया है। एक आधे ने, किसी का हरियाणा से थे कोई हमारे, ठीक है, ओमवीर जी, तो आ गया फोन, अब क्या करें। मैं कहा जी ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, आप तो धज्जियां उड़ा दोगे जी मार्केट की, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं कहा जी मेरी 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 आजादी है, मैं आजाद देश में रहता हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, आप मेरे को कुछ नहीं कह सकते। आपने लीगल फाइट देने ले लो जाके, दिस इज माई वे टू डू वर्क, ठीक है ना। और मेरा कुछ कह लीजिए कि मेरा ऐसा है भी कंसर्न, मेरा कंसर्न और इंटेंशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन यही है कि जो बंदा इकोसिस्टम में आ गया वो इकोसिस्टम से सारी जिंदगी ना जाए, वो यहीं से ले। when we are giving you, नदी बह रही है, नहाओ धो मजे मारो, एंजॉय द वाटर इज इटसेल्फ इज आई वुड से, जहाँ जल होता है वहाँ उत्सव होता है। तो ये ज्ञान का जल है, आप एंजॉय कीजिए, नो इश्यूज। उसके बाद तो पैसे भी नहीं है, ये तो आपका कोर्स खत्म होने के बाद तो आई एम देयर प्रैक्टिकली विद यू। आप काम करो, लोगों को काउंसिल करो, हील करो, केस को लेके आओ। जो दिक्कत में है, इफ यू फाइंड एनीवन हु इज इन ट्रबल, ब्रिंग देम टू अस, वी विल हील इट। 3 महीने का टाइम दे देना, प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ी पकड़। बट जिस केस में कुछ ऐसे केसेस जिनका कुछ हो नहीं सकता, जिनका टाइम ही नहीं आया, लोग बोलते हैं सर वास्तु पे पैसा लुटा लुटा के थक गए। भैया जन्म कुंडली के अंदर जब तक विमशोत्री के अंदर आप फंसे हो मार्केश में, तब ये इन डेप्थ है। जन्म कुंडली में विमशोत्री दशा में मार्केश के पीरियड चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको स्वयं प्रभु भी नहीं बचा सकते, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अशोक जी और पूर्णिमा जी, इनको बातें समझ आ रही होंगी। हमने सावित्री जी की कुंडली में देख के बताया था, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड गए तो किस पॉइंट पे जाके, वहीं पे जाके उसी ईयर में उसी मंथ में वो पॉइंट्स कैप्चर किए थे हम लोगों ने उन कुंडलियों में। तो आपको तो पता है, आप लोग डिस्कशंस करते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। हर चीज आपको दिखेगी प्रैक्टिकली, आपको दिखनी स्टार्ट। इवन मैं तो बोल रहा हूँ ना, लोग बात से बात करेंगे एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के एलिमेंट जज करो। आप लोग पूर्णिमा जी से आज मिले, पूर्णिमा जी के एलिमेंट्स क्या है देखो, ठीक है ना। ये ऐसे बात करती है तो क्यों करती है, सोचो। इसके पीछे 2 चीजें फैक्टर है, एक इनका लगन साइन, इनका गवर्निंग प्लैनेट, दूसरा उसी लगन साइन के कारण इनके एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो सारा का सारा इनके वास्तु के कारण, वो बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना, दैट कैन बी बैलेंस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग। आपको इकोसिस्टम के अंदर 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से चलना है। यू हैव टू सी एलिमेंट्स, यू हैव टू सी प्लैनेट्स, ठीक है। अक्सर वास्तु पीपल आर नॉट एबल टू हील, रिजल्ट नहीं ला पाते बिकॉज एस्ट्रोलॉजी का एलिमेंट रह जाता है, राइट। तो ऐसे समझना, ठीक है ना। अभी अगर यहाँ पर अगर देखोगे, अंजलि जी हैं, 2 साल से 3 मेरे को जानते हैं। अब इनका जब केस रिजॉल्व होगा तो वो 2023 के बाद ही होगा, इनको डेट्स बता रखे तो तभी होगा। ये एक आपको एग्जाम्पल केस स्टडी बता रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जिसका टाइम जब आएगा उसको तभी मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे तो फिर मैं भी फिर अमिताभ बच्चन हो सकता था अपने फील्ड का। मेरा टाइम आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो ना सही, बट काम करने दो, कोई भी उसमें बीच में मत हो, बस पॉइंट ये है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। सर ये अमिताभ बच्चन ये नहीं, पर ये धर्मेंद्र गीता, तो आप हो ही सर। ये गीता का मैसेज यही है, हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना एक्चुअली। वी डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट एरिया। माय एरिया इज माय वर्क, सिंपल। बाकी तेल लेने गई दुनिया, ऐसी तैसी गिरा गई दुनिया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। वी विल डू आवर वर्क विद फुल क्लोजेस्ट इंटेंशन। जो बोल रहा हूँ ना, आप आंखों में आके डर के बात होगी। अमित जी को कुछ पूछना है, मोनिका जी को पूछना है, दर्शना जी को पूछना है, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू माई क्लाइंट्स ऑल्सो इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं सब क्लाइंट्स भी हैं, सब पूछते तो है, बट स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है ना।
तो मैं आपको जो समझाता हूँ वो सारा लेयर वाइज खोल के बताता हूँ, 12 के 12 अगर आपके ओपन अप कर दूंगा। और वैसे बॉडी को काटने बैठोगे तो 7 चक्र बॉडी में नहीं मिलेंगे, देख लेना, बट उनको समझना पड़ेगा। चलो बोलो यार, क्वेश्चन बता दीजिए आप, नहीं तो मैं तो बोलता रहूंगा। योग योग कारक क्या होता है? योग कारक क्या होता है? देखिए कई ग्रह ऐसे होते हैं, ठीक है, योग कारक से मेरा मतलब है कि की प्लेनेट आप समझ लो एक तरह से। जैसे कारक आप शब्द बोल रहे हो ना, योग कारक, वो एक तरह का हर एक कुंडली के अंदर बेस्ड ऑन द लगन साइन, बेस्ड ऑन द लगन साइन, ध्यान से सुनो, आपका लगन साइन कुछ भी हो सकता है। और लगन साइन वो होता है जब आप पैदा हो रहे थे तो उस समय स्काई शॉट के अंदर पहले घर में कौन सी राशि है, वो स्काई शॉट है। तो आपकी कुंडली में जो आपका गवर्निंग प्लेनेट है, ठीक है ना, उसके लिए जो कारक ग्रह है वो कौन सा है, ठीक है। तो कारक ग्रह जो होते हैं वो 1, 5, 9 से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और बाकी मार्केश की तो लाइन लगी पड़ी है हमारे पास, दूसरा सातवां प्रबल मार्केश, छठा सातवां 12वां, छठा 8वां 12वां दूसरा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ये इसीलिए तो वो ये पार्ट एंड पार्सल आपके कर्म है। मोनिका जी टेंशन मत लो आप, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रही हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा अभी और अभी पेशेंस रखना मैंने पड़ेगा। थोड़ी तो क्लास ली थी लेकिन आगे की इन डेप्थ तो ली नहीं थी, थोड़ी सी होती है। अरे कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा। इकोसिस्टम में रहो, कम्युनिटी क्लासेस तो ज्वाइन करो, हफ्ते में एक बार तो बुला रहा हूँ, और क्या ही बोल रहा हूँ। मैं तो धीरे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मेरी तो टीम ने हमारा सिर खा लिया कि सर आप बहुत फास्ट जाते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट ने अभी बोल भी दिया, वो कथक के स्टूडेंट कहते हैं सर आप बिरजू महाराज हो, हम नहीं है, ऐसा भी हुआ। तो वो ऐसा होता है, दैट इज बट है, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कहाँ बिठा रहे हैं सब लोग आपको। अरे वो कथक के टीचर है ना, वो मलेशिया से सीखते हैं यहाँ पे किसी बैच में, हाँ, उनके लिए सब कुछ बिरजू महाराज हैं, तो उनको धीरे 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 मैं क्या, चलो आपके लिए हम 3 ताल में चलते हैं। वो ताले होती हैं, 14 तरह की ताल होती है। एक्चुअली मैं म्यूजिक में भी रहा हूँ काफी टाइम, 3 साल मेरी बैचलर ऑफ म्यूजिक हूँ मैं, ठीक है ना, इंडियन इंस्ट्रूमेंटल में। तो फिर उनको मैंने बताया कि अब आपको 3 ताल में समझाएंगे धीरे धीरे, 14 मात्रा की जो 3 ताल होती है ना, 16 मात्रा की, उसमें लेके जाएंगे। तो वो कहते हैं सर आप जो है दादिन तिन्ना दादरा कैरवा कर रहे हो, ठीक है ना, दागे ना तिनक दिना, दागे ना तिनक दिना, ये टोन्स होते हैं। तो दादरा कैरवा पूरा बॉलीवुड जो चलता है इसी पे चलता है। और जो जो आपके जो दूसरे जो ताले होती है, ताल मतलब रिदम, जब रिदम स्लो कर देंगे तो सबसे स्लो जो है वो 16 ताल है। इस हिसाब से 3 ताल बोलते हैं उसको, 16 की 16 मात्रा ताल बोलते हैं। फिर उनको अब मैं 3 ताल में पढ़ा रहा हूँ आजकल, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। वहीं से मेरे अंदर भी इंस्पिरेशन आई कि मैं कोर्स को 3 महीने में पढ़ाऊंगा। बट अभी भी मेरे अंदर पेशेंस इन द सेंस ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उनको ये बोला अशोक जी को कि एक मॉडरेशन वाला सेंटर वो तो चाहिए सेशन, 2 से कम तो क्लास नहीं करेंगे। तो अब आप लोगों को जो बुक लेने को मैंने बोला है इसलिए बोला है, तो अपनी अपनी किताबें निकाल लो। उसके बाद आपको जो है पहले ही बोल दिया जाएगा, केस स्टडी दे दी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हम आपको दे देंगे। पूरी क्लास के अंदर आप वही डिस्कशन करोगे, उसकी रिकॉर्डिंग सारी की सारी मैं चेक करूंगा, और साथ में वो पर्सन चेक करेगा जो मेरा क्लाइंट होगा जिसको हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे। वो बताएगा कि मृत्युंजय जी को कितने मार्क्स दिए जाए, उसको पता है भाई अपने बारे में ज्यादा। वो बोलेगा कि ये अमित जी ने कैसा काम किया, हाउ रविंद्र जी इज परफॉर्मिंग, दे विल स्पीक देमसेल्फ। सुब्रांशु जी ने कितना आज सही बताया, और इसमें इतना बताया, आगे कैसा बताएंगे। तो ये सब चीजें वहां से मार्किंग आपको दिलवाऊंगा, मैं खुद तो करूंगा ही, वहां से भी आपको पैरेलल नोट पे फीडबैक दूंगा। फिर तो इम्प्रूवमेंट होगा ना, फिर तो होगा। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, गलतियां करने से मना नहीं कर रहा, गन लेके तो बैठा नहीं हूं मैं, आपको बंदूक लेके तो नहीं बैठा कि नहीं गलती नहीं होती, गलती दबा के करो, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ठीक है ना, गलती हो जाएगी चलेगा, मगर क्लाइंट के आगे नहीं होना चाहिए, उसका खराब डेफिनेटली। नहीं होना चाहिए योगा बस। जी अब आपका टाइम आ गया है, अब आपको एक थोड़ा सा 5 मिनट का प्लीज एक मेडिटेशन सेशन आप दे श्योर, दीजिए इफ इट इज पॉसिबल, या और फिर क्लास को डेफिनेटली, वाइंड अप करते हैं। सब रिलैक्स होते हैं, डेफिनेटली सर। काफी जी, सिर भारी हो रहा होगा आप लोगों का। अभी रिलैक्स कर देते हैं सर। कौन सी बुक यस, कह रहे थे आप? मैं बीच में लॉग ऑफ हो गया मैंने था मेरा 5 मिनट के लिए। फल दीपिका लिंक लिंक मैं भेज देता हूँ आपको भी थोड़ी देर हाँ में। वो मंगवा ली सर है, मंगवा ली, मैंने भी मंगवा ली। बस मंगवा और क्या, ली है उसको हाँ। अपने पास रखो। पता नहीं सर ये कोई स्पेशली किताब है, बहुत टाइम लगा रही है, मतलब मैंने आपने बहुत 1 महीने बाद आई थी। हाँ अभी वो कह रहा है कि 4 अगस्त को आएगी सर, अमेजोन से मंगवाई है। हाँ, फल दीपिका। क्योंकि मेरा जितना भी इकोसिस्टम है वो उसी से चल रहा है ना, तो मैं हाँ, एक्चुअली नहीं मैंने इट्स ही वेरी सबको लिंक नाइस दिए हैं। बुक।
उसका तो वो उस- उड़ गया, उसका स्टॉक खत्म हो गया होगा। खत्म है सारे सर, वो स्टूडेंट्स को दो बोलता हूँ तीन ही थे, दो तीन ही थे। जो एक आपने वो लोशो ग्रिड वाली हिंदी वाली बताई थी, वो तो एक आई, वो भी फटे पेज आए हैं। उसको मैंने फोन किया अमेजन वाले को, उनका सेलर कॉल है, सर ये लास्ट पीस है, चाहिए तो बताओ मैं वापस ले लेता हूँ। मैं कहा नहीं रहने दे, मैं जोड़ लूंगा। हाँ वो So it एक्चुअली was ना, like that. एक्चुअली ये वो बुक्स हैं। अभी ये तो कुछ नहीं है, अगर आप कभी इवेंचुअली मेरे साथ कभी राजस्थान चलोगे मेरे घर पे, तो एक पूरी वॉल लगी पड़ी है वहाँ पे। हमारे पिताजी तो पूरे कहते हैं शौकीन है इन चीजों के। हमारे पास हाँ ओरिजिनल लाल किताब भी पड़ी हुई है। सर एक क्वेश्चन मेरा हाँ, और है आपने सर। भेजा था उसका, उसका भी, लाल सर किताब नहीं, एक ओरिजिनल वाली भी लाल किताब पड़ी हुई है जो जो पर्शिया जिसमें से आई है। पहेलियां टाइप्स में अरेबी लिखी हुई है, अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक या में, हाँ हाँ वो सारी पश्तो में पढ़ी हुई लिखी है, हुई है, पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। उसका पश्तो में हिंदी वर्जन लिखी हुई तैयार है वो। करवाया है और है हमारा। हाँ हाँ, वो सर आपने पहले जो लिंक भेजा वो पश्तो का ही भेजा था, उसमें वो उसी में अरेबिक में ही लिखा हुआ यस था। यस, वी विल शेयर इट विद यू, नो प्रॉब्लम। मृत्युंजय जी कुछ बोल रहे थे, आप बताइए ना। सर एक छोटा क्वेश्चन है, मतलब वो कोई आ रहा हूँ मोनिका जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ प्रोफेशनल बताइए। क्वेश्चन नहीं है। सर आपके फादर साहब की मैं वीडियोस देख रहा था सर, हाँ जी। और तो सर आप राजस्थान से टच बताते हैं, बट उनकी आवाज में सर बड़ा पंजाबी टच आता है सर। तो हम तो सर, पंजाबी से हैं ना सर। तो भाटिया सर। अच्छा पंजाबी हो गए, रहते राजस्थान में, ऐसा है क्या सर? हाँ जी, राजस्थान में मेरा फैमिली, मेरे फादर देखिए रिटायर्ड बैंकर हैं, ठीक है ना। हाँ उन्होंने बताया था सर वीडियो यस, में। और इसके अलावा जो मेरे फादर हैं वो डॉक्टरेट हैं इस फील्ड के अंदर। ही इज 2 times अवार्डेड फ्रॉम दुबई एंड मलेशिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स उनके जो हैं, और उनको इस फील्ड के अंदर 35 साल प्लस हो चुके हैं। और मेरी लाल दीक्षा किताब उनके अंडर में, एक्सपर्ट है वो तो। हाँ उनकी दीक्षा में, मतलब मेरी जब दीक्षा स्टार्ट हुई थी, मैं 16 साल से उनके साथ ही मैंने सारा अपना वक्त गुजारा है अपनी लर्निंग के दौरान। तो बहुत छोटी एज में इस इकोसिस्टम में आ गया था मैं। Yeah. तो ये एक सारी बात है, और हम सर पंजाबी उनकी ही तो है सर, वी आर आवाज ही बड़ी पंजाबी। पावरफुल है सर, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना सर, बड़ा एक ऐसा लगता है कि मतलब बहुत जबरदस्त सर। मैं तो खूब सुनता हूँ। और सर उनका उनका चेहरा नहीं आता सर, सिर्फ ऑडियो आती है सर, अरे ऐसा भाई क्यों? उनके वो ऑडियोज भी बड़ी मुश्किल से रिट्रीव किए हैं हमने। अच्छा एक्चुअली दैट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। उसके लिए हमारे को बहुत स्ट्रगल करके जो स्टूडेंट्स को ढूंढ ढूंढ के, वो एक्चुअली आते नहीं है, पब्लिक अपीयरेंसेस देते नहीं है जनरली। उनका अपना मेडिटेशन वगैरह और उनका वो रहता है, अंदर के शेड्यूल्स रहते हैं। उनका पब्लिक अपीयरेंस जो है जनरली रहता नहीं है, क्योंकि फिर उनके साथ प्रॉब्लम थोड़ी दूसरी है, ठीक है ना। उनका जो सर्कल का लेवल है वो दूसरा है थोड़ा सा। अब जैसे अभी फिलहाल अभी वो इस समय अभी रिसेंटली जो है, अभी आपके चौटाला साहब जो है, ये जो सीएम है, डेप्यूटी सीएम, अभी उनके टास्क वगैरह, उनके प्रोजेक्ट लंबे लंबे चल रहे होते हैं एक दिन में, तो क्योंकि वास्तु को होता नहीं है। और उसका जो सारा जो लोड होता है वो मेरे को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि अभी वर्चुअल हो गया सारा, तो ही इज नॉट सो इक्विप्ड। तो उनको उधर सपोर्ट देना भी पड़ता है मुझे। तो हाँ दिस इज हाउ उनकी जो वो लॉबी वो बिल्कुल उधर ही जा रही है, वो इधर अभी देख ही नहीं पाते हैं। तो ये सारा सर लोड मेरे ऊपर है इनडायरेक्ट। एक मिनट और लूंगा सर। उनका अरे एक बिल्कुल लीजिए। मैं ऑडियो सुन रहा था सर यूट्यूब पे, तो जी वो शायद कहीं गए सर, मुझे जगह भूल गई सर। वहां पे एक नॉर्थ हाउस था, एक साउथ हाउस था सर, विदिशा, विदिशा गए थे। विदिशा। तो उसमें विदिशा गए नॉर्थ हाउस के पीछे सर एक गड्ढा था, और आपके थे। फादर साहब ने बोला कि नहीं आप साउथ हाउस लो। तो वहां का जो लोकल वास्तु वाला था वो बोला कि ऐसे कैसे। तो फिर आपके फादर ने उसको समझाया, और वो फिर पैरों पे गिर गया, मतलब जबरदस्त। नॉर्थ में अबंडेंस थी, उन लोगों ने भी 4 पेट्रोल पंप और ले लिए उसके बाद। पहले उस समय एक ही था, विदिशा, हाँ मुझे तो याद आ उसमें गया। 4 पेट्रोल पंप अभी और खरीद लिए उन लोगों ने। और वो साउथ वाला ही घर लिया उन्होंने सर। वही ले, उसी के बाद ही ग्रो किए हैं। देखो बिजनेस टू बिजनेस है ना सारा। आपका बिजनेस क्या है, पहली चीज ये देखेंगे हम, ठीक है ना। आपका बिजनेस क्या है, अगर आप कंसल्टेंट हो, आप मूवेबल नेचर में हो, आपका बिजनेस है मूवेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग के पर्सन हो, तो मैं आपको बोलूंगा नॉर्थ वेस्ट में बैठ गया, नॉर्थ वेस्ट में बैठो। जिससे आप मूवमेंट रखोगे तो आपके पास बिजनेस आ रहा है। आप मूवमेंट बंद कर दोगे, आपको बॉस निकाल देगा 2 महीने बाद, ज्यादा बर्दाश्त करके बोलेगा घर बैठो। यस। दैट इज अ हार्ड कोर फैक्ट। आपका प्रोफेशन कैसा है, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है आपका वास्तु की, जो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम। डेट ऑफ बर्थ पहली लेयर है। देखो हम डाटा साइंस का ही काम कर रहे हैं, डाटा साइंटिस्ट के, ये तो अब यहाँ पे यूरोप में 10 साल 15 साल पहले डाटा साइंस कर रहे हैं। वी हैड बीन डूइंग फ्रॉम 10,000 years डाटा साइंस। आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब लेके फिर हम डाटा की चर्निंग करते हैं। अगर आपके पास सही डाटा है तो इवेंट मिस नहीं होगा। जिस डेट को आपने बोला है उसी डेट को वो इवेंट होगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ, ये सब कुछ आपको आपकी कुंडलियों में दिखा दूंगा खोल खोल के। अभी जब मैं आपकी केस स्टडीज खोलूंगा ना, उसमें मैं आपका एक एक एलिमेंट खोल दूंगा, तो फिर आप देखोगे, आपको पता लगेगा यस ये हुआ था उस समय, ठीक है ना। तो आप खुद ही देख लो, आपकी कुंडली, अपनी लाइफ का कोई मेजर इवेंट याद कर लो, जब आप बहुत ज्यादा खुश थे या बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उस समय वो इवेंट हुआ होगा।
उसी हाउस से जुड़ा होगा, ये आपको पता लग जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। जोगा जी, शैल वी स्टार्ट? यस सर। नहीं, अच्छा मोनिका जी का क्वेश्चन रह गया, सॉरी। मोनिका हाँ जी जी, कुछ पूछ मोनिका रही जी। थी, बोल मतलब श्री की फल दीपिका का ऑथर कौन है? कल दीपिका का ऑथर एक सेकंड मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ गुरुजी, आपने एक्चुअली जो अलग आचार्य अलग मंत्रेश्वरा, हाँ करेक्ट, अलग आचार्य अलग मंत्रेश्वर। पब्लिकेशन हाउसेस का भी चक्कर रहता है इसके अंदर। और सही बताऊं, मैंने बुक्स से नहीं सीखा भाई, आई डोंट ओपन द बुक्स, आपको मैं बता चुका हूँ। अगर मेरे से आप पूछोगे, मुझे ये जरूर पता है कि हाँ बेस्ट बुक्स लिटरेचर है कहाँ, बट उनके ऑथर्स वगैरह मुझे नहीं पता, बिकॉज आई नेवर ओपन अप द बुक्स। ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं आपको जितना ही पढ़ा रहा हूँ, ये सब अपना एक्सपीरियंस टीच कर रहा हूँ, ठीक है ना, नथिंग इज दैट, ये सब एक्सपीरियंस है। ये किनेस्थेटिक लर्नर्स का फीचर होता है, जिनका बुद्ध उचका होगा वो सुन के सुनते हैं। और मेरे तो कान भी बड़े हैं, मेरे पापा बोलते थे छोटे होते से मेरे कान काफी बड़े साइज। आई यूज्ड टू बेंगलुरु में वेदांता बुक हाउस है, यहाँ चामराजपेटे में, वहां आपको ये सब बुक्स मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। मैं भी वहां से ही लेके आया। राइट राइट राइट, मृत्युंजय को बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, समझ रही हूँ। सो जोगा जी, लेट जोगा जी कम, देन वी विल स्टार्ट। जोगा सर, प्लीज स्टार्ट। यस सर। ये कल दीपिका। या करेक्ट करेक्ट। ठीक है। मैं सोचता था दीपिका जी ने लिखी है ये किताब। अरे भृगुनाथ मुझे, मिश्र। आप इस चीज को प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। मेरे को किसी भी बुक के ज्यादा नहीं पता है। मेरे लिए मेरी किताब मेरे फादर ही, आपको सही बताऊं, सही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वहीं से सीखा हूँ। और ये गुरु गुरु ट्रांसमिटेड ज्ञान है, मतलब उन्होंने मेरे को पढ़ाया और केस स्टडीज लाइव दिखाई काउंसलिंग्स में। और मैं यही एक्सपीरियंस आपको देना भी चाहता हूँ। ये जो आचार्य डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारा, ये इसी के अराउंड है। आप काम कीजिए, मैं आपके लिए आई बिकम अ सपोर्ट, मैं आपके लिए काम करूंगा, काउंसलिंग आपकी मैं करूंगा सारी, और आपके क्लाइंट की काउंसलिंग मैं करूंगा। यू जस्ट स्टार्ट योर, यू नो, आपको एज आचार्य डेवलप करना मेरा काम। ये नहीं नॉलेज ले ली फिर छोड़ दिया, फिर इधर उधर हो गए। दैट इज व्हाई वी आर कमिंग अप विद द नाउ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अपने पूरा सिलेबस को अभी जो मृत्युंजय जी पढ़ रहे हैं, इसको हमने और कम इजी करने के लिए अब 2 पार्ट में बांट दिया और इजी कर दिया, ठीक है ना। तो उसमें अब हम वी आर वर्किंग ऑन इट, तो उसका स्ट्रक्चर आपको जल्दी दिखेगा। और इसको मतलब इजी करने के लिए टू ब्रेक इट डाउन। बट आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने आपको 3 मंथ वाले फॉर्मेट पे लिया है, 1 मंथ में नहीं लिया। जो मैं हमारा पहला बैच था, जो हमने 1 मंथ में क्लियर किया था, पहले जो शुरू के बैचेस हैं, वो उनको पता है, जो इसमें बैठे हैं सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं। चलिए अक्षोक, जोगा जी प्लीज। ठीक है, हम लोग आंखें बंद करते हैं, स्पाइन स्ट्रेट रखते हैं। इनहेल स्लोली, होल्ड, exhale slowly, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold। जैसे हम एक्सेल करेंगे, अपने माइंड को बोलेंगे रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, exhale, relax. Now focus on your right foot. Tighten your right foot. एकदम टाइट कर लेंगे, स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे, फुट को एकदम टाइट कर लेंगे, इतना टाइट कि इससे ज्यादा टाइट नहीं हो सकता। एकदम से रिलैक्स करेंगे अब उसको। अब हम अपने राइट काफ मसल्स को एकदम टाइट कर लेंगे, टाइटन, टाइटन, more tighten that it cannot be tightened anymore, and relax. थाई मसल्स को करेंगे, राइट थाई को टाइट, 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 एकदम टाइट, and relax. Now focus on your left foot. Tighten it, tighten it, tighten it. इतना टाइट कि और टाइट नहीं हो सकता। Relax. Left calf muscles tighten, tighten, tighten,
and relax. Left thigh muscle, tighten, 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 ये पहनना है tighten, मुझे, ये पहनना है relax. बाबा। एक मिनट, वो एक मिनट तो Any outside sound is getting you more deeper into trance. Any outside voice is helping you out to go into more deeper trance. आपको और ज्यादा गहरी नींद में लेके जा रही हैं आसपास की जो भी नॉइसेस या वॉइसेस आ रही हैं। अब अपने हिप मसल्स पे फोकस कीजिए, टाइट कीजिए पूरी लातों को, दोनों को टाइट टाइट टाइट, इससे टाइट। अपने एब्डोमिनल मसल को टाइट कीजिए, थोड़ा टाइट कीजिए, ज्यादा नहीं, एंड रिलैक्स। अपने चेस्ट मसल्स को टाइट कीजिए, टाइट 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 एंड रिलैक्स। एंटायर स्पाइन को एकदम खिंचाव कीजिए, टाइट 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 एंड रिलैक्स। अपने राइट मुट्ठी को एकदम टाइटली बंद कीजिए, फिस्ट को एकदम टाइटली बंद कीजिए कि आप हाथ पूरा टाइट हो रहा है, इससे टाइट अब नहीं हो सकता, एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट को हम टाइट करेंगे, हैंड को, फिस्ट को एकदम टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, टाइट करेंगे एंड रिलैक्स। अपनी नेक मसल्स को खींचेंगे ऊपर की साइड, खींचेंगे, कोई बात नहीं, जैसा भी फेस बनता है फ्राउनिंग फेस बनने दो, बस टाइट कीजिए उसको, और टाइट एंड रिलैक्स। फेशियल मसल्स में नोज, फोरहेड, चीक्स टाइट कर लीजिए, ईयर, नोज टाइट 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 एंड रिलैक्स। अपने ब्रेन के जो मसल्स हैं एकदम से वो साइड को, लेफ्ट और राइट ब्रेन साइड को दोनों तरफ खींचिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए एंड रिलैक्स। एंटायर बॉडी tighten it, tighten it, tighten it and relax. अब मैं कहूंगा कि आप सोचिए कि आप एक सीढ़ी पे खड़े हैं जिसके 10 स्टेप्स हैं नीचे उतरने के लिए। हर एक स्टेप नीचे उतरेंगे, काउंट करूंगा मैं, हर स्टेप में आप और डीपर ट्रांस में, और डीपर निद्रा में जाएंगे। 10, you are going into double trance state. 9, you are deep and sleepy state. 8, more I say sleep or trance, you go into 10 times deeper relaxation. 7, more deeper, 40 times more deeper. 8, 50 times more deeper than previous count. 9, 7, deeper. 6, deeper. 5, 4, 3, 2, and 1. As I click a clap, you will sleep into deep state. Now, if you are listening to my voice is taking you to more trance state, more deeper state. Whenever you think a word sleep or trance, from now onwards, your mind will always take you to this state of sleep. No outside noise, no outside negative thoughts will ever disturb you in this state unless it is a case of emergency.
Now enjoy few moments in this state. I'll be quiet and taking deep breath, and you are going more and more deeper into that state. Just this much of relaxation fulfills your desire or your need of 1 hour of sleep, 1 hour of rest to your entire body system, muscular system, skeletal system, energy body. Now with the count of 5, you will come out of this state slowly, gradually. Be aware of your environment around. 5. Be aware of the place you are sitting on. Is it a chair or a sofa or a bed or a ground? Be aware of it. Be aware of your body at the count of 3 now. Where your legs are, your chest, your body, your face. Just observe it. At the count of 2 now, just make a movement of your feet and hands. Just feel it. And with the count of 1, slowly as you feel comfortable, open your eyes with a big, big, beautiful smile. Take a moment, be quiet, let everybody get up. Amitji, come to the consciousness. Very good. Very good. So everybody is awake now. You may share your experiences. बस ये रात भर चल सकता है क्या ऐसे में? पर्सनल कॉल कर लो, रात भर चलाते हैं. I don't mind. मेरी तरफ से मना नहीं है. मैं तो 24/7 अवेलेबल. कभी भी चल सकता है, आप बोलो मैं करवा दूंगा. हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्लीज अपने कैमरास ऑन करके रखिए. हो सकता है कि आप डीप ट्रांस में चले जाओ, मुझे किसी और टेक्निक से निकालना पड़े. हो सकता है पास्ट लाइफ में चले जाओ. ठीक है, तो वो निकालने के टेक्निक्स डिफरेंट है थोड़ा सा. तो मुझे दिखना चाहिए कौन कितना ट्रांस में जा रहा है, सो दैट आई कैन रिकॉल देम. ठीक है, तो अगली बार से ये ध्यान रखेंगे. आई विल अनाउंस आल्सो कि अगर ऐसे हम ट्रांस कर रहे हैं कुछ, तो विल कीप आवर कैमरास ऑन. ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बहुत बढ़िया था. Yes, beautiful. It's beautiful. Thank you so Very much. nice experience. Thank you. And it's like found a lot of peace. There's a lot of stress with this kind of work that currently I'm doing. Easily I don't go to sleep, but with this 5 minutes, Yeah. whatever you did was, I yawned and it was very nice. So thank you so Yeah. much for that. Welcome. God bless you. और किसी का कोई पेन या हैवीनेस थी जो रिमूव हुआ? Thanक यू so much. ठीक है सर, अप टू यू.
योगा जी आपकी अगर अवेलेबिलिटी थोड़ी सी हमारे को मिल जाए तो हम इस तरह के रेगुलर सेशंस वी कैन गिव। अगर आपने हमेशा, मैंने जब जब पूछा तब तब मना किया, चलो ये तो मेरी नाराजगी है, मैं सर अब अभी अभी यहाँ पे मेरे ना आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। ओके ओके ओके, हिप्नोथेरेपी के एडवांस अभी क्लासेस आपको चल मैं रहे हैं फोर्स अभी। नहीं करूंगा। बट नहीं आई मैं बस जस्ट ये मीन टू बता से रहा हूँ। कि वी विल हैव दिस काइंड ऑफ सेशंस। अभी हम लोग डेफिनेटली, वी आर ट्राइंग के कुछ अच्छे हाँ और डेफिनेटली। नहीं, आई टैलेंटेड कैन पीपल। टेक वन बाय वन अगर हो सके तो। आई ऑल्सो नो हिप्नोथेरेपी, आई एम टेकिंग एडवांस क्लासेस ऑन दैट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल दैट। तो हम लोग डीपर डीपर करके ट्रांस में लेके जाएंगे किसी दिन एक को, थोड़ा आदत पड़ जाए इस ट्रांस की, फिर हम 20-25 मिनट का सेशन करके एक बार तो पास्ट में जाके देखेंगे सर, ठीक है? ट्राई करेंगे, मे भी कुछ लोग जा पाए, कुछ लोग ना जा पाए, कुछ और टेक्निक से जा पाए, बहुत टेक्निक्स होती हैं। विल ट्राई थोड़ा थोड़ा करके, बट उसके लिए मुझे सबके कैमरास ऑन चाहिए, बस ये प्रॉमिस मुझे चाहिए कि कैमरा सबके ऑन हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? और जिसका Yes, बहुत because मजबूरी है, yes, it is a very dangerous process. we can do one on one if somebody is not able to open the camera in person over here like public में, तो it's fine। बट हाँ, प्रेफरेबली सबका ऑन हो जिस टाइम मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं, ठीक these है? are very क्योंकि आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, मैं भी जाता हूँ डीप में जब मैं करवा रहा होता हूँ, बट क्लिक एकदम से मेरे गाइड्स कर देते देखो सबको जरा। फिर देख के लाना पड़ता है, अभी भी बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर 2-3 मिनट और करते तो धीरे धीरे आदत डालेंगे इसकी, ठीक है? एंड विल प्रैक्टिस सर्टेन और थिंग इन ऑकल्ट एंड दिस मेडिकल एसोटेरिक साइंसेस, ठीक है? आप लोग और भी साइंस में एक्टिव हो जाएं, रेकी में भी एक्टिव रहें, थोड़ा सा टैरो में भी एक्टिव हो जाए, तो मेरा भी इंटरेस्ट दोबारा से आ जाएगा। मेरा इंटरेस्ट खो गया था, किसी ने रिप्लाई नहीं किया था, सर ने भी बोला था इनफैक्ट। रेकी एंड टैरो ग्रुप्स के अंदर प्लीज आप लोग कम्युनिटी में एक्टिव रहिए, बिकॉज देखिए इट इज, मैं बार बार बोलता हूँ, इट इज अबाउट सत्संग, इट इज अबाउट योर कंपनी, बी इन पॉजिटिव कंपनी, you will get certainly, you will be on the positive track, simple है। यस। और सर अगर किसी को योगा इनमें सर से, आपका मुझे मोबाइल लगा नंबर दे दीजिए। 1-2 जनों को थोड़ा स्लीपिंग प्रॉब्लम है एनर्जी की वजह से, ठीक है? अगर हो सके तो सर से कांटेक्ट कर लीजिए, सर के पास में क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल का अगर किसी को चाहिए, नींद की प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा टंबल भी एमेथिस्ट का काम कर जाएगा, आप सर से मंगवा लीजिए, मैं आपको उसको क्लीनिंग का प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है? आप वो क्लीन करके उसको अपने सराहने के नीचे रखिए, अगर क्योंकि 1-2 का Definitely, मुझे definitely. एनर्जीज आए जो डिस्टर्ब थे स्लीप से। ऐसा किसी के साथ है क्या कुछ यहाँ पे? मुझे एनर्जीज समझ में आया ऐसा कुछ। पूर्णिमा जी के साथ है, हाँ तो अमित जी प्लीज के साथ भी है। पूर्णिमा जी, बोलना चाह रही थी पूर्णिमा जी यू, तो माइक शायद खराब है ना। एंड सुब्रांशु जी भी हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु आप जी बताइए। हाँ, ये अमित सुधांशु जी कुछ शो कर ऐसे रहे हैं, दिखेगा लेट नहीं, मी आपकी चेक। लाइट 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 वीक है। अमेथिस्ट कौन सा कलर है? अमेथिस्ट कौन सा कलर है? एमेथिस्ट हमेशा एक ही कलर का होता है सर, पर्पल कलर का होगा, पर्पल कलर का, वायलेट ऑलवेज कलर पर्पल। बोल लो, पर्पल कह लो, ये आप दिखाएं कौन सा है? इस पे क्लियर नहीं, ये तो आपका क्लियर क्वार्ट्ज है, ये नहीं, उसका नहीं है। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये आपका उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्फटिक, स्फटिक का। स्फटिक है। तो आप एमेथिस्ट के ऐसे टंबल रख लो या फिर ब्रेसलेट पहन लो, ब्रेसलेट दिन में पहना जाता है, टंबल रात को हम सराहने के नीचे रख सकते हैं, ब्रेसलेट भी रख सकते हैं, बट 4-5 घंटे से ज्यादा आप ब्रेसलेट ना पहने और सराहने के लिए नीचे रख आप रहे हो एक तो काम better करो है। जोगा जी, आप जो है ना ये एक लिस्ट बना के हमारे को वर्ड फाइल में दे दीजिए, हम सारे ग्रुप्स में सबको एक मतलब भेज देते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं पूरा ठीक लाइक है, माइंड में फ्लोट करवा देते हैं। आप मुझे भेज ठीक है, दो एक लिस्ट, मैं सबको फ्लोट कर दूं, जिसकी जो जो प्रॉब्लम है वो अकॉर्डिंगली चूज कर लेगा। यू जस्ट अकॉर्डिंगली मेक अ चूज लिस्ट, कर लेंगे, ये शेयर इट विद मी, आई विल शेयर इट फर्दर विद एवरीवन इन ठीक द है? ग्रुप, आई सबको मेक इट मिल एन जाएगा आई राधा। शेयर, बिकॉज़ मुझे एनर्जीज आए तो योगा मैंने सर एकदम आपका से शेयर करा। मोबाइल नंबर शेयर करिए। सर से मिल जाएगा, निधि जी से मिल जाएगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। मजा आ रहा है? मजा वर्ड तो पूछूंगा ना, हाँ लेकिन मजा आ स्पिरिचुअली रहा भी तो एक मजा है। है, हाँ आना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट पॉइंट ये है कि हर चीज लिमिट में अच्छी है, ये मजा भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ये लर्निंग का है, और इसी इसका मजा वहीं तक ही अच्छा है जब तक हम जो है, अगर आगे डिलीवर नहीं करोगे तो ब्लॉकेज होगी, देन आपका जो ये होगा ना, धीरे धीरे आपकी जो नॉलेज है ऑब्सोलीट होती जाएगी। अदरवाइज अगर जब डिलीवर करोगे इसी चीज को तो आप अपडेटेड रहोगे हमेशा, आपको खुद को पता लगेगा कि कौन से प्लैनेट्स कहाँ पर क्या इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज आर वेरी। अपने घर के एलिमेंट्स देखो, ठीक है ना, आप सिम्टम्स को नोट करना स्टार्ट करो एवरीडे, अपनी बॉडी के लिए भी, ठीक है, और अपने घर के बारे में,
घर में किस मेंबर को क्या दिक्कत है, देखो आप प्रॉब्लम बताओगे, मैं आपको जोन बोलूंगा और उसी जोन में प्रॉब्लम होगा, देख लेना। दिस इज हाउ यू हैव टू कैप्चर द थिंग्स। और ये चीज मैं कर रहा हूँ, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड, ये तुम्हें करनी है, आप लोगों को करना भैया। आप लोग करो, जब आप लोग किसी से बात करो उसको हील कर दो, मजा तब आए। वो लोग बोले अमित जी से बात करके मजा आ गया यार, मृत्युंजय जी से बात करके आज मजा आ गया, ऐसा फील आना चाहिए, फील गुड फैक्टर डिलीवर करो, ठीक है ना। आपको पूर्णिमा जी और अशोक जी से मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा, फील गुड फैक्टर आया। awesome, they are awesome. दिस इज हाउ वी हैव टू सी, Thank दिस इज you. हाउ वी हैव Thank टू you, सी। everyone. Thank you, Yoga ji. Thank Thank you, you. sir. Pleasure. चलिए गाइस, विद दिस नोट वी विल टेक द लीव, आज सेशन को यहीं विराम देते हैं। चलिए, और नेक्स्ट सैटरडे हम मिल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, Thank you so much, प्लीज sir. टेक Good केयर। night. Good night. गुड नाइट, Sir. Good night, everyone. Thank Yeah, you. yeah, yeah. Bye bye.